Any questions with CSS? Any questions while you guys did some assignments? Any questions? Anyone? Any questions with CSS? Responsive part, flex, anything. PHP, Sukhpreet, Shivam, Sahib, Rishabh, Divya, Avya, Ashti. Is it clear? Any questions? Yes, no, say something. Am I audible? Hello, am I audible, team? Let's start with JavaScript since no one have doubts, no one is responding. Okay. Is my screen visible? Okay. So team, today we'll start with JavaScript. Okay, so your HTML and CSS is over. I asked so many times, but I couldn't see anyone responding. So I'm considering you have no doubts with CSS. So in JavaScript, we are going to see basic today. Okay, introduction, variables, and operators in JavaScript. So firstly, what is JavaScript? Okay. So we have seen HTML is helping with the structuring of my website and CSS is helping me with the styling of my website. Okay. Now, next thing is how you can make it interactive. Okay. For example, if I go to Amazon, if I click on this product, and if I click on add to cart, if I click on this add to cart, you will see this product is added to the cart page. Okay. So the moment I click on add to cart, you can see it is coming in cart page. And here the button vanished and it is saying in basket. Okay. That means it's in the cart. And the moment I added it in the cart, you can see the value changed. Now, if I delete it, okay, you will see the value of the product will also change. The value of the total is also going to change. Okay. So right now, when I click on something and your data is getting changed, that is what JavaScript is. That is going to help you to do the logical part, calculation part, changing the content, okay, of the HTML. That is where it will help you. For example, this is 47. The cart items are 47. If I click and add another product to the cart, okay, it will show me 47. You can see. So 46 is the content. 46 is coming from HTML. Now it is changing to 47 through JavaScript. Okay. If you can see the product value is this much. Okay. So if I delete, you can see the product value will change. Okay. The cart value will change. So now you can see all this data is changing. If I click on iPhone, okay, you can see iPhone will come. If I'm searching and it is giving me whatever I'm searching for. If I add a filter, okay, it is showing me that. So this is what JavaScript is. To do all of it, you need JavaScript. So JavaScript is like an interactive glue between HTML and CSS. JavaScript is the programming language of the web. Okay, so it's like an interactive glue between HTML and CSS, and JavaScript is the programming language of the web. Now, in this, you will see, like in interview also, a question is asked, what is JavaScript? Okay, so you can simply answer, it is used to make your website interactive and dynamic.
Okay, let me take an example to explain these two terms better. So let's say, okay, so if I want to do shopping, okay, let's say I want to do shopping. So my first thing will be I'll go to mall, okay, I'll go to a store. Once I enter a store, they give you this cart bag, this black color cart bag in which you can put all the products that you have selected. Then you will go to a sale girl or sale boy. You will ask them to show you the products which you want according to your choice. Whichever product you feel is like okay, you if it fits you, whatever you're buying. So you will put it in your cart bag, okay, and then you will go to the counter. You will do the payment, okay, and then you will go out of the store. So this is a step you will follow if you physically go to buy something, okay. Now the scenario has changed. The same process I have to follow in a website now. So whatever I've said right now, I have to follow the same for a website. Okay. So now what I will do, I will go to a website. Similarly, I'll go to Amazon. Amazon. Just like you go to a mall for shopping, I'll go to Amazon. Whatever you need, just like you go to a store, and then you particularly look for whatever product you want. Let's say I want iPhones, I'll select iPhone. Just like you go to sale that a phone store, just like you go to a store of phones, similarly I'm selecting iPhone here. Okay. And then you go to a sale girl or sale boy, you're telling them what price you need, what color you need, GB, RAM. Okay. So that is what you select. Let's say I select black color. So I'm getting the result for the black color here. Okay. Like you go to the store. Okay, just like I'm going to a website, then you go to which store, let's say Apple store. Okay, so that is what I'm looking for, iPhone. Then you go to sale girl, just like this filtration is happening here. So this filtration part is also JavaScript. And then whichever product you like, you click on add to cart. You can see that product is added to the cart. You can see it yourself. That product is added to the cart. Okay, so you can see this product is added to the cart. And just like you add the product in your cart bag, that black bag that you get once you go to a mall. Okay. Then you go to the counter and you do the payment. Just like I can go to cart and I can do the payment part. Okay. So what I'm trying to explain is whatever you were doing offline, you just brought it online. Okay. Whatever you're doing offline going to a store, you're just doing everything online now. So to do online, so display of the this products and responsive part, and this product is having all the CSS properly, that is HTML CSS. But if you want to implement these functionalities of like adding it to the cart, increase the quantity also, all this part, deleting the product also, okay, all this part is your JavaScript. Now this is all JavaScript, okay. And you can see if I add to cart, the count increases here, the value of changes here. If I go to card for payment part, I need JavaScript. Filtration, I'm using JavaScript. This search is happening because of JavaScript. Okay. So now I can say this is interactive. How? I am asking for something and it is giving me a result. What is interaction? Interaction means one person, even in human interaction, one person is, let's say, speaking and the other one is reverting, other one is replying to it. Okay. So उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कि ये हम इस इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम इस इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से आई स्पीक समथिंग एंड द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग, तो हम बोलते हैं कि हम उससे इंटरेक्ट करें। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू समथिंग, आप लोग मुझे रिवर्ट करोगे, सो दैट इज व्हाट दिस इंटरेक्टिविटी इज। सिमिलरली अब इस वेबसाइट में जैसे हम फिजिकली एक स्टोर में जाके सब प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, सेम वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं। अब वेबसाइट में आप लोग क्या है, ऑब्वियसली थोड़ा टेक्निकल है कि आपको इस बटन पे क्लिक करना है फिर आप कार्ट पे जाओगे, तो ये बटन आपको चाहिए। बटन आ तो जाएगा HTML से, लेकिन क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट इसमें ऐड हो जाएगा, वो फंक्शनैलिटी आपकी जावास्क्रिप्ट से इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आप कुछ आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो, आपको आंसर कर रहा है, वो कार्ट पेज में ऐड हो गया। इफ आई क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, यू कैन सी दिस प्रोडक्ट इज एडेड टू द कार्ट पेज, ठीक है। तो यही मेरे लिए एक रिप्लाई है उसका, ये हो गया। मैं इस पे डिलीट पे क्लिक कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट पेज से डिलीट हो गया, ये इसका रिप्लाई है कि मैंने डिलीट कर दिया है। तो फिजिकली नो वन इज देयर, फिजिकली कि यहाँ पे कोई वेबसाइट में नहीं, आप वेबसाइट आप पे कोई बैठा नहीं है जो आपको रिप्लाई कर रहा है साथ के साथ, ये अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट से कोड ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कर क्या रही है, इंटरेक्टिविटी।
और डायनेमिक का मतलब होता है डेटा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वंस आई क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, आप देखोगे यहाँ पे 46 से काउंट 47 हो गया, और यहाँ पे एक पॉपअप आया था आइटम एडेड, एक पॉपअप आया था ना अभी ब्लैक कलर का आइटम एडेड, तो वो पॉपअप आ रहा है, ठीक है। दैट इज इंटरेक्टिविटी ऑल्सो, अगेन दैट इज इंटरेक्टिविटी, वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि हाँ ऐड हो गया। डेटा चेंज, डायनेमिक क्या है, डेटा चेंज हो रहा है, देखो वैल्यू बदल गई, ये 46 का 47 हो गया, मैं डिलीट करूंगी यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी, मैं इसको डिलीट कर दूंगी ये फिर से वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज डायनेमिक, डेटा इज चेंजिंग, डायनेमिक मीन्स डेटा इज चेंजिंग एज पर योर क्लिक, ठीक है। दैट इज डायनेमिक, दैट इज व्हाट जावास्क्रिप्ट इज ब्रिंगिंग टू द वेबसाइट, जावास्क्रिप्ट इज ब्रिंगिंग लाइफ टू अ वेबसाइट, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर, डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव? It is the only programming language that your browser can understand. Okay. And all your advanced technologies like Express.js, Node.js, all are written over the top of React, over the top of JavaScript. Okay. JavaScript can change HTML content. HTML content means this. See, if you can see it here, right now I just showed you. Once I click on add to cart, you can see the value changing from 46 to 47. Now this 46 is coming from HTML. This content here will come from like a container element is coming from HTML, but value inside this keep on changing because of JavaScript. Okay. Even here, this product, if I do a tick mark, let's say I select white also, okay, you can see the values here. If I select this white over here, okay, you can see here the products are coming according to that. So you on click of this filtration, something is changing in your website. Okay, that is what we call as change in content. Okay, content is what? It can be image, it can be a text, it can be a video, it could be anything. That is changing because of JavaScript. And we can change more. We can actually add styling. We can change styling. We can change elements. We can change attribute value also. Okay. Like when you add a class in HTML element, you can change that class through JavaScript. You can do that. So JavaScript is that powerful. Without JavaScript, there would be no games, no dynamic forms, no interactive maps, Gmail, YouTube, Netflix. Nothing will be there if JavaScript is not there. Okay. Now, a bit of history about JavaScript. That JavaScript was created by Brendan Eich in 1995. Okay. Towards the end of 1996, he standardized JavaScript as uh, ECMAScript by the company called ECMA. तो यहाँ पर एक कंपनी थी एक्मा, एक्मा कंपनी का नाम है, जिसने जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज करके एक्मा स्क्रिप्ट कर दिया था। बेसिकली जो भी नए वर्जन आते हैं टीम जावास्क्रिप्ट के, जैसे ES6, ES7, तो ES का मतलब होता है एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसका मतलब यही है ES6 क्योंकि जावास्क्रिप्ट का 6th वर्जन। तो हम अभी भी आज भी यूज जावास्क्रिप्ट वर्ड यूज करते हैं जब हम मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है। जब जो एक नई जब इनिशियली 1995 में जावास्क्रिप्ट हुई थी, हम उसको जावास्क्रिप्ट ही बोलते हैं। जो नए नए वर्जन आते रहे उसमें हम बोलते हैं ES3, ES4, ES5, लेटेस्ट इज ES13। ओके, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वर्जन है। हर वर्जन में कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो फंक्शनलिटीज तो आती रहेंगी। जैसे कि आप जावा लोगे, जावा 8, जावा 9, ठीक है, बहुत सारे वर्जन है उसके भी। तो अगर कोई जावास्क्रिप्ट बोले, एक्वास्क्रिप्ट बोले, इसका मतलब सेम ही है। कि जस्ट दैट जब जावास्क्रिप्ट बनी थी उसका नाम जावास्क्रिप्ट था, तो हम अभी उसको जावास्क्रिप्ट ही बोलते हैं, जो ट्रेडिशनली जो हम पढ़ रहे हैं। प्लस अब जो भी जैसे हम ES6 तक पढ़ेंगे, ES7 तक सारे वर्जन पढ़ेंगे, तो जब ES6 आएगा, ES7 आएगा, तो मैं ES6 वर्ड यूज करूंगी कि ES6 में ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एंड अ बिट ऑफ मोर हिस्ट्री। तो एक कंपनी थी बेसिकली नेटस्केप, आप लोगों को अगर पता पड़ा आपने कभी, तो नेटस्केप जो कंपनी थी उसकी लैब में इन्होंने ये जावास्क्रिप्ट बनाई थी। तो इन्होंने, हमारे पास एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा, ठीक है। तो इन्होंने ना सबसे पहले जावा यूज किया था। इन्होंने ब्राउजर में सबसे पहले जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी थी, ठीक है। लेकिन वो कंपैटिबल नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले जावा यूज करी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब ब्राउजर में, ठीक है, लेकिन वो कंपैटिबल नहीं थी। फिर इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसमें वैसे कोई पूछने नहीं वाला कि जब जावास्क्रिप्ट बनी थी, ठीक है, तो उसमें क्या था,
इन्होंने जावास्क्रिप्ट यूज करने से पहले उसमें जावा यूज की थी ब्राउजर में, लेकिन जावा वाज नॉट कंपैटिबल, सो दैट्स व्हाई ही स्विच टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और नेटस्केप की लेबोरेटरी पे बनाई थी। और कभी भी, अभी क्या, जावास्क्रिप्ट पूरा वर्ड है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सामने वाले को जैसे इंटरव्यूअर को बताने के लिए ना ऐसे बोल देते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावा एंड, मतलब जावास्क्रिप्ट को जावा बना देते हैं, मतलब इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं, इसको मतलब जावास्क्रिप्ट बोलने की जगह ऐसे शॉर्टकट में बता देते हैं जावा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, जावा एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपकी सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, वो वाली एक आती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो डिफरेंट है। और जो जावा स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर इंटरव्यू में आपको बोलना है तो जावा स्क्रिप्ट ही बोलना। कुछ लोग ने जावा स्क्रिप्ट को जावा बोल देते हैं कि शॉर्टकट में बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछने लग जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट ही बोलना। दिस इज दी हिस्ट्री। नेक्स्ट इज इंजन एंड रन टाइम। ठीक है, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम एंड इंजन। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है कि जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो एक रन टाइम एंड इंजन भी बनाया गया था। तो जैसे कि ब्रेंडन एक ने सबसे पहले जावा यूज करी ब्राउजर में, बट वो कंपैटिबल नहीं थी। ठीक है, तो जब इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाया था, इन्होंने एक रन टाइम इंजन भी बनाया था। ठीक है, जो नेटस्केप कंपनी आप जानते हो ना, जो मैं बोल रही थी, वो आज आज के टाइम पे यू गाइस नो इट थ्रू द नेम मोजिला। तो नेटस्केप कंपनी ही जो थी, उसी को रीनेम करके मोजिला, बेसिकली मोजिला जो आप जानते हो वो पहले नेटस्केप थी। तो इसलिए मोजिला जो थी वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जो स्पाइडर मॉन्की है हमारा, एक ये होता है इंजन, होता है इंजन, आप ये लगा लो एक ऐसा इन्वायरमेंट। ठीक है, आप ऐसे मान लो एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल आएगी और रन होगी। ठीक है, अब ऐसे मान लो जैसे एचटीएमएल ब्राउजर में जाती है ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट आपकी एक ऐसी फाइल है जो हम बनाएंगे ऑब्वियसली। वो रन करने के लिए आपको जहां भी जावास्क्रिप्ट रन करनी है, आपको ये इंजन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज यू कांट। तो अब मान लो कि आपका ब्राउजर है, ये ब्राउजर है। ठीक है, इसमें एक इंजन या रन टाइम इंजन पड़ा है, जिसमें जावास्क्रिप्ट एक्चुअली रन होते हैं। इसके अंदर वो मैकेनिज्म होगा इस फाइल को रन करने का। ठीक है, तो जहां जहां आपको ये रन टाइम इंजन दिख रहे हैं, वहां आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो JavaScript is already running on your browser, on your computer या टैबलेट। तो जहाँ जहाँ भी आप वेब ब्राउजर एक्सेस कर पा रहे हो, क्रोम, ओपेरा, सफारी, हर कंपनी, हर ब्राउजर का अपना अपना इंजन होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इंजन मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जो ब्राउजर का ही पार्ट है, जिसमें जावास्क्रिप्ट जाके एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, और अगर ये इन्वायरमेंट ना हो तो आप जावास्क्रिप्ट रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर कंपनी का खुद का रन टाइम इंजन होता है। जैसे गूगल क्रोम के पास V8 इंजन है, V8 इंजन उनके रन टाइम इंजन का नाम है। मोजिला के पास स्पाइडर मोंकी है। इसके अलावा हमारे पास एक एनाकोंडा होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एज का एनाकोंडा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंजन है। हर कंपनी, हर ब्राउजर का अपना इंजन है, सफारी का अपना होगा, ओपेरा का अपना होगा। ठीक है, अब आप लोगों को इस रन टाइम इंजन के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि whenever you have to run JavaScript, you need this runtime and engine as a part of your browser. And every company like browser, Google Chrome, Mozilla, they already have it. The name is V8 Engine and SpiderMonkey. तो सबसे पहले स्पाइडर मॉन्की इंट्रोड्यूस हुआ था, इन्होंने ही किया था, ब्रेंडन एक ने। स्पाइडर मॉन्की सबसे पहला इंजन है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे इन 24, इफ यू आस्क मी, द मोस्ट एफिशिएंट वन इज V8 इंजन। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे एफिशिएंट इंजन V8 इंजन है। ठीक है, तो ये होता है रन टाइम इंजन। अगर ये नहीं होगा तो जावास्क्रिप्ट रन ही नहीं हो पाएगी। जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए आपके ब्राउजर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, आपको बस थोड़ी नॉलेज, नाम या डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्लियर? रन टाइम एंड इंजन इज क्लियर? Now, this is a bit of idea about JavaScript. What is JavaScript history? Now we'll see how we can include it in our code. Okay. अब हम लोग देखेंगे JavaScript हम अपने कोड में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे अब तक, कि HTML सारी फाइल्स यहाँ पे आएंगी, इमेजेस इमेजेस में जाएंगी, CSS में। सिमिलरली आप एक नया फोल्डर बना लो यहाँ पे JS।
आप एक नया फोल्डर बना लो यहाँ पर JS, ठीक है। इस JS फोल्डर के अंदर अब हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। JS के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल script.js, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे script.js। और जैसे हम लोग HTML में करते हैं वैसे ही JS में, CSS में करते हैं HTML, जैसे HTML.html से सेव किया मैंने JS.js से, वैसे ही CSS.css से करते हैं सेव, राइट। वैसे ही जावास्क्रिप्ट को सेव किया, जैसे CSS में मैंने लिखा था ना style.css, वैसे ही मैंने script.js लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मुझे ऐड करना है। दो प्लेस है जहाँ ऐड कर सकते हो, या तो आप इसको हेड में ऐड करो, ठीक है, या फिर आप इसको बॉडी में ऐड करो। यही दो पॉसिबल प्लेस है। या तो आप इसको स्क्रिप्ट टैग जो भी आपके एक्सटर्नल जेएस है, या फिर यहाँ पर भी आप अगर आप स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, ठीक है। एनीवन हु कैन टेल मी, अगर मुझे इंटरनल सीएसएस यूज करनी हो, इंटरनल सीएसएस, तो कौन सा टैग आएगा? इंटरनल सीएसएस ऐड करनी हो तो कौन सा टैग आएगा? स्टाइल, राइट। तो जैसे आप लोगों ने सीएसएस में स्टाइल किया था ना, वैसे जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट टैग आप हेड में ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई भी एक जगह ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे, जो भी आपको ऐड करना हो। दोनों में ऐड करने का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, आज ही बताऊंगी। डिफरेंस होता है कि अगर यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि ऐड कैसे कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे अलर्ट। अलर्ट एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा हमारी वेबसाइट में, ठीक है। अलर्ट बॉक्स जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वो बाद में बताऊंगी। डिस्प्ले, कुछ भी डिस्प्ले करना हो अलर्ट बॉक्स में तब हेल्प करता है, ठीक है। अभी के लिए मैंने सिर्फ हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग लिखा, और इसके बीच में मैंने जावास्क्रिप्ट कोड डाल दिया अलर्ट हेल्प, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी। यू कैन सी इन अलर्ट बॉक्स हेलो, दिस इज कॉल्ड अलर्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में आप लोग देख सकते हो कि हेलो आ गया। लेट मी रिफ्रेश, यू कैन सी हेलो इज कमिंग। अब यही चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, इसको कमेंट कर देंगे अब हम लोग, ठीक है। और हम यहाँ लिख देंगे अलर्ट हेलो, और आई विल जस्ट से हाय, ओके। आप लोग देख सकते हो अलर्ट बॉक्स में हाय आ रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो अलर्ट बॉक्स में हाय आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट टैग जब हेड सेक्शन में था, ठीक है, तब भी अलर्ट आ रहा था, और जब स्क्रिप्ट टैग बॉडी सेक्शन में था तब हाई आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग जो है आप दोनों जगह ऐड कर सकते हो, हेड में भी और बॉडी में भी। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग लिख के इसी में कोड लिखना शुरू कर दो, या फिर जो हमने एक्सटर्नल जेएस फाइल बनाई है उसको लिंक कर दो, ठीक है। तो लिंक करने के लिए भी स्क्रिप्ट टैग ही लिखते हैं, बस यहाँ एसआरसी एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, ठीक है। फाइल पाथ तो आपको पता ही है, इंडेक्स से जेएस में जाना है, तो आई विल राइट डॉट स्लैश सिंपली जेएस एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी ऐड हो गया और एक्सटर्नल जेएस भी ऐड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट टैग नहीं, स्क्रिप्ट टैग भी ऐड कर सकते हो, जेएस भी ऐड कर सकते हो, दोनों। इनफैक्ट यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट टैग आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इन फ्यूचर अगर आपके पास दो जेएस फाइल्स हो, आप दोनों जेएस फाइल्स को भी यहाँ लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास तीन जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, तीनों फाइल्स इस कोड में चाहिए, तो आप तीनों फाइल्स भी ऐड कर सकते हो। तो आप मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ हाई के लिए किया, और एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ एक्सटर्नल जेएस के लिए किया, तो एसआरसी एट्रीब्यूट ऐड करके कर सकते हो, ठीक है। आप ये यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे डायरेक्ट, अब यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल ऐड करी है, ये आप ऊपर भी कॉपी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, आप हेड में भी डाल सकते हो, बॉडी में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट टैग हेड में पहले आप लोगों को दिखाया हेलो आ रहा था, वही स्क्रिप्ट टैग बॉडी में डाल दिया। अब एक एक्सटर्नल बनाई थी, वो भी यहाँ पे ऐड कर दी, बस उसमें एसआरसी एट्रीब्यूट डाल के उसका फाइल का पाथ देना, दैट्स इट, ठीक है। अब
एक्सटर्नल वाली में हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं, अलर्ट, ये वाला मैं कमेंट कर देती हूँ। अब आप देखना हाई आ रहा है, ठीक है, ये हाई कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल जेएस से। तो यहाँ पे डायरेक्टली अलर्ट में हाई लिख दिया मैंने, ठीक है, ये एक्सटर्नल जेएस से आ रहा है, यू कैन सी हाई आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन योर एचटीएमएल। आंसर इज वेरी सिंपल, देयर आर टू वेज, either you put it in head or in body. In head, you can write through script tag. In body, you can write through script tag. And if you're using external JS file, just add script tag, just write src attribute. Okay. And आप लोगों को externally use करनी है, मतलब हम लोग जैसे CSS के लिए external use करते हैं ना, ऐसे वैसे आप लोगों को भी ज्यादातर external ही use करनी है, ठीक है। क्लियर, ये इंक्लूड वाला पार्ट क्लियर है सबको? Just take a look at the code. Take 2 minutes. Just take a look at the code. अलर्ट, डोंट वरी, अलर्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है वो मैं बताऊंगी, अलर्ट बॉक्स है वो। Should I go ahead? ओके, सो अभी हमें ये पता लग गया कि जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कहाँ से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले, ठीक है। अभी डिस्प्ले क्या है कि ऑब्वियसली अब जावास्क्रिप्ट क्या है, एक मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जावास्क्रिप्ट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़े हैं दूसरी, जैसे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आप लोगों ने कौन से पढ़े हैं प्रोग्रामिंग में? जैसे अगर आपने C++, आप लोगों ने एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी लैंग्वेज, यू ऑल आर फ्रॉम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको मैं बोलूँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई टॉपिक्स कौन से पढ़े आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? अगर आपने पाइथन पढ़ी है, C++, C#, सी कुछ भी, जावा कुछ भी पढ़ी है, .NET, कौन सी बेसिक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, उसमें कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हुए कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं? Array, correct. Pointer in Java, okay. Pointer is there, I know, but in JS you don't have pointer topic, okay. But yeah, array is there. What else? What else you guys have? I mean, I want everyone to respond. Like whatever topic you have studied while doing any other programming language. जावा करते हुए जावा या C++, सी तो आई थिंक सबने पढ़ी होगी, C++ में से कोई एक तो सबने ही पढ़ी होगी। DSA is like it's a I would say a structure in a way that you must have used some programming language while doing DSA. DSA is a top is like a different subject which you implement through one of the programming language. तो DSA में भी आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी DSA के कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। वेरिएबल्स पढ़ा है आप लोगों ने, डेटा टाइप्स पढ़ा है, C++, करेक्ट, ठीक है, C++। तो आप लोगों ने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, फॉर लूप्स, व्हाइल, करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो आप लोगों ने ये सारा पढ़ा होगा, वेरिएबल, लूप, डेटा टाइप्स, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर। तो यही सेम टॉपिक आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या पे आ जाएगा, जैसे कि वेरिएबल्स बनाने का डिफरेंस आ गया, डेटा टाइप्स कौन सी है, इन सब का डिफरेंस आएगा। जो इनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कॉमन है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिंटेक्स बदल जाएगा। जैसे जावा थोड़ी सी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें इंट कैरी ये सब कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे आ जाएगा। अदरवाइज इनको क्यों बोलते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, बिकॉज इसके आपके जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, आपको ये कॉन्सेप्ट कॉमन मिलेंगे। तो हम लोग भी जावास्क्रिप्ट में पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है, मतलब अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होंगे। आपको सिर्फ सिंटेक्स समझना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर रीजन जावास्क्रिप्ट इज कंपैरेटिवली इजी। जैसे HTML आप लोगों ने पढ़ा,
वो थोड़ा सा टैग बेस्ड था, सीएसएस थोड़ा सीएसएस प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ लॉजिक चलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि सिर्फ लॉजिक की बात नहीं, यहाँ पे आपको यूआई पे कुछ बदलना है, वेबसाइट की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 वेज होते हैं अगर हमें कुछ भी चेंज करना हो या डिस्प्ले करना हो वेबसाइट पे, ठीक है। इनर एचटीएमएल है, एक इसके साथ इनर टेक्स्ट भी होता है, दोनों में से कोई भी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट एंड कंसोल, तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है। अलर्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है, देखो अलर्ट बॉक्स मैंने अभी दिखाया ना, ठीक है। अब मैं सारा कोड यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी इनेबल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज अलर्ट बारी बारी आएगा, ठीक है। अलर्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, आप देख सकते हो अलर्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इसको कमेंट करिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको डेवलपमेंट के वक्त यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, जब आप यहाँ पे लिखते हो कुछ भी हेलो, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने अभी तक बॉडी में कुछ भी नहीं डाला है जो यूआई पे आए, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग्स है। आप देखोगे यूआई पे अब हेलो आ जाएगा, आप खुद देख सकते हो वेबसाइट में मेरे यूआई के हेलो आ गया। अब वो हेलो क्यों आया है, ठीक है, वो हेलो सिंपली इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो जब भी आपको वेबसाइट के यूआई पे कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिखाना है तो ये यूज नहीं करना है, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अब क्या होगा टीम, जब भी आप एक कंपनी में काम करते हो, स्पेशली ऑन अ वेबसाइट, तो हमारे पास सपोज अगर 8 पीपल की टीम है, राइट। तो उसमें दो 4 डेवलपर है, 2 फ्रंट एंड 2 बैक एंड, 2 टेस्टिंग की टीम होगी, एक लीड होगा जिसको फुल स्टैक आता होगा, एक मैनेजर होगा, ऐसे ऐसे करके टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप अपना कोड, अब हम लोग डेवलपर है, ठीक है, तो हम लोग कोड डेवलप करेंगे। आपने अपना कोड डेवलप कर दिया, वेबसाइट बना दी, उसके बाद आप टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर करते हो अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। आप टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर करते हो अपना प्रोजेक्ट। जब आप टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर करते हो अपना प्रोजेक्ट, तो वहां पर क्या होता है, वो लोग टेस्टिंग करते हैं, वो लोग ना टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज करो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रही हूँ, राइट, तो वो जावास्क्रिप्ट के कोड को टेस्ट करेंगे। अब वहां पे वो उनको टेस्ट करने के लिए ना, आप ये मान के चलो कि टेस्ट केसेस लिखते हैं, स्निपेट लिखते हैं कुछ कोड के, जैसे एपीआई से डेटा आ रहा है, या फिर सपोज आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट ऐड हो रहा है कि नहीं, तो कुछ टेस्ट केसेस लिखते हैं कुछ उसके रिलेटेड, ठीक है। तो वो टेस्ट केस जब वो लिखते हैं उस टाइम पे उन्हें ये इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तब उन्हें उस डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जरूरत पड़ती है टेस्ट केसेस लिखते हुए, ठीक है। आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने कभी कोड रन किया हैकर अर्थ, हैकर गीक्स फॉर गीक्स, कहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी ट्राई किया, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कहीं पे भी, किसी भी गीक्स फॉर किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कोड आपने, एक क्वेश्चन होता है, आप कोड लिखते हो, आप सबमिट करते हो, आपको लिखा आता है कि टेस्ट इतने 3-4 टेस्ट केसेस पास। किसी ने की है आज तक कोडिंग ऑनलाइन हैकर अर्थ या हैकर रैंक पे? ठीक है, जिसने भी की होगी या फिर देखी होगी, आई थिंक कॉलेज में भी होगा, कॉलेज में भी आप अपने कोडिंग एग्जाम ऑनलाइन ही देते होंगे ना, शायद में भी कॉलेज का इन हाउस कोई प्लेटफॉर्म हो, लीड कोड, या लीड कोड भी हो सकता है। तो वहां पे जब आप सपोज आप जावास्क्रिप्ट का ट्राई करना वहां पे, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो वहां पे ना टेस्ट, वहां पे लिखा था ना, जब सबमिट करते हो कि 2 टेस्ट केस पास्ड, 3 टेस्ट केस पास्ड, वो जब लिखते हो ना 2 टेस्ट केस पास, 3 टेस्ट केस पास, जो टेस्ट केस पास्ड होते हैं ना, वो किसी ने वो टेस्ट केस भी बैकएंड पे लिखे हुए हैं, जिसके थ्रू आप चेक करते हुए, जिस जो सिनेरियो होता है उसके थ्रू वो चेक कर पाते हैं कि टेस्ट केस पास हुए हैं कि नहीं। तो वो जो टेस्ट, एक तो होता है आपने कोड डेवलप किया, एक होता है उस कोड को कि वो सही चल रहा है नहीं, तो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, वो जो टेस्ट केसेस लिखते हो ना, वो आप टेस्ट केसेस वहां लिखते हैं, 2 टेस्ट केस पास, 3 टेस्ट केस पास, ठीक है। वो टेस्ट केस भी लिखे जाते हैं, या तो डेवलपर ही लिखता है या टेस्टिंग की अलग टीम होती है, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, अब सी प्लस प्लस के लिए अलग होता है, सी शार्प के लिए भी अलग होता है, ठीक है, टेस्ट वो सारे के लिए टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। वैसे ही सेम टीम जावास्क्रिप्ट की अगर बात होगी, तो जावास्क्रिप्ट के टेस्ट केस लिखने हैं। अब जावास्क्रिप्ट के टेस्ट केस तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट और राइट यूज होगा। अभी डेवलपमेंट के टाइम आपको कहीं यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि टेस्टिंग टीम यूज करती है, और जो भी यहाँ पे लिखोगे आएगा, अभी लिख रहे हो तो यूआई पे आ जाएगा,
बट आपको ये यूज नहीं करना, ये टेस्टिंग टीम यूज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसोल डॉट लॉग ऑफ, लेट्स से HTML, ओके। अब ये जो कंसोल होता है ये होता है डीबगिंग पर्पस के लिए, डीबगिंग पर्पस। इसका पर्पस है कोड को डीबग करना, ठीक है। अब डीबग का मतलब यहाँ पे ये हुआ सिंपली कि अगर इन फ्यूचर मुझे कोई भी एरर आया, ठीक है, तो वो मुझे कंसोल में जाके चेक करना है। सेकेंडली मुझे कोई वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगी, ठीक है, तो मुझे किसी वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज है, तो एपीआई या बैकएंड से कहीं से आ रहा है, मुझे चेक करना है, या बहुत ज्यादा डीप नेस्टेड कोई एरेज या ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे वो चेक करना है, ठीक है, या फिर मुझे सिंपली कोई वैल्यू देखनी है वेरिएबल की क्या आ रही है, तो हम कंसोल यूज करते हैं, ठीक है। या कहीं एरर आ गया मेरे कोड में, वो भी कंसोल में दिखेगा। तो आप लोग क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाओगे, ध्यान से सुनना, राइट क्लिक हियर, गो टू इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एलिमेंट्स के साथ ना कंसोल टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करो, देखो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा HTML आ रहा है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 3, स्क्रिप्ट डॉट जेएस इज माई फाइल नेम, लाइन नंबर 3। आप देख सकते हो जो भी आप यहाँ कंसोल में लिखोगे वो यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। इसका मतलब कंसोल किसके लिए है, डेवलपर्स के लिए, हमारे लिए सिर्फ, ये यूजर के लिए नहीं है। यूजर कभी भी कंसोल में जाके चेक नहीं करेगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट पे जाऊंगी ना, अब यहाँ से कंसोल पे देखो, इनके कंसोल एम्प्टी आ रहा है, अभी कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी वेबसाइट में आ रहा है क्योंकि मेरे कंसोल में कुछ डिस्प्ले कराया हुआ है। तो कंसोल जनरली आप डीबगिंग के वक्त यूज करोगे, कोई एरर आ गया आपके कोड में, वो भी आपको यहीं पे दिखेगा, यहीं पे आके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो एरर तो कर ही सकते हैं, एरर हम देख सकते हैं इसमें। तो अलर्ट हो गया यूजर के लिए, अलर्ट बॉक्स आप यूजर को दिखा सकते हो, ठीक है, आप यूजर को अलर्ट बॉक्स दिखा सकते हो। कंसोल आप यूजर के लिए नहीं है, ऑब्वियसली आप कभी भी किसी वेबसाइट के कंसोल में जाके कुछ नहीं चेक करते हो, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए कि जब हमें डेवलप करना होगा कोड। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेस्टिंग टीम के लिए, हमें यूज नहीं करना है एज अ डेवलपर, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग आप बहुत यूज करने वाले हो। लास्ट फोर्थ है इनर एचटीएमएल, जो कि आप एक्चुअली यूज करोगे यूजर को कुछ भी डिस्प्ले कराना हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। वो उसका रीजन ये है कि मुझे आप लोगों को डिफरेंस बताना है हेड और बॉडी का, स्क्रिप्ट टैग जब हेड और बॉडी में होता है उसका डिफरेंस, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला कोड, इनर एचटीएमएल वाला, सिर्फ सिर्फ एक कोड। अब यहाँ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ भी दिखा दूंगी कैसे ऐड करना है, सिर्फ यहाँ पे इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है और एक्सटर्नल भी है, तो एक्सटर्नल भी लिंक रख सकते हो आप, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, मुझे क्या करना है, लेट्स एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, आईडी इज इक्वल टू डिस्प्ले, और यहाँ मैं कर दूंगी एलिना, एलिना कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब आप लोग देखोगे पी टैग में मैंने आईडी डाल दी डिस्प्ले, पी टैग में मैंने आईडी डाल दी डिस्प्ले, ठीक है, और टेक्स्ट डाल दिया एलिना। अब मैं क्या करूंगी, इस एलिना को मैं एलेक्स करूंगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मैंने बोला था ना कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू यू कैन चेंज द कंटेंट। अब कंटेंट क्या होता है, जब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हो एलिना, फॉर दिस एग्जांपल इज एलिना, ठीक है। तो एलिना से मुझे एलेक्स करना है, लेकिन मैं किसके थ्रू करूंगी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आप लोग क्या करोगे, सीएसएस में किसी एलिमेंट को आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, सीएसएस में आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, अगर मुझे इस एलिमेंट को आईडी से सिलेक्ट करना हो कैसे करेंगे। आईडी, परफेक्ट, आईडी से करेंगे, ठीक है। अब सीएसएस में तो आईडी से करते हैं, हैश से बेसिकली। अब जावास्क्रिप्ट में वही चीज करनी है, तो मुझे क्या करनी है टीम, सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पे अलीना को एलेक्स करना है, ठीक है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है, तो यहाँ पे कोड लिख सकती हूँ, ठीक। एक्सटर्नल में भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यहाँ लिख रही हूँ ताकि मैं मेरे को हेड और बॉडी का मेन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसके पास आईडी डिस्प्ले है। तो जावास्क्रिप्ट में ना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये सिंट अभी आप ये समझ लो कि करने का तरीका ये है, ये जो भी मेथड वगैरह है वो बाद में बताऊंगी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप पहले लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी,
ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो, कहाँ से ये फंक्शन आया, क्यों आया, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे वहां। ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे कह लो कि इस डॉक्यूमेंट में से वो एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसके पास आईडी, या डबल कोट से सिंगल कोट्स में पास कर दो डिस्प्ले आईडी का नाम, हैश वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ डायरेक्ट। तो मैं बोल रही हूँ जावास्क्रिप्ट में आप एक आईडी वाले एलिमेंट को ऐसे सेलेक्ट करते हो, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आप बोल रहे हो ये इस डॉक्यूमेंट में से वो एलिमेंट सेलेक्ट कर दो जिसके पास आईडी डिस्प्ले है। ठीक है। तो इतने पार्ट में पी एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, जितना आपका हैश से हो जाता था ना वो अब होगा जावास्क्रिप्ट। अब उसके इस कंटेंट, ये एलिमेंट तो सिलेक्ट हो गया यहाँ तक, अब उसके कंटेंट को बदलने के लिए लिखोगे डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू स्ट्रिंग में एलेक्स। ठीक है। और सेमीकोलन इन दी एंड। ये एक पूरी स्टेटमेंट होती है जावास्क्रिप्ट में। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ सेलेक्ट द एलिमेंट हैविंग द आईडी डिस्प्ले एंड चेंज इट्स एलिमेंट कंटेंट टू एलेक्स। ठीक है। तो इनर एचटीएमएल क्या करता है, डिफाइंस एलिमेंट कंटेंट, ये करता है, इट डिफाइंस एलिमेंट कंटेंट। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वो एलिमेंट सिलेक्ट कर दो जिसके पास आईडी डिस्प्ले है, और फिर उसका इनर एचटीएमएल आप कर दो एलेक्स। पहले था अलीना, अब आप देखोगे एलेक्स आ गया, और ये अलीना ही है एचटीएमएल में, चेंज यहाँ से किया बाद में, आप देख सकते हो एलेक्स आ रहा है। ठीक है। आप इसको ना ऐसे नहीं लिख सकते बिना डबल कोट्स, क्योंकि ये वैल्यू है ये। ठीक है। तो इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख सकते हो। तो इनर एचटीएमएल क्या करता है, एलिमेंट कंटेंट को डिफाइन करता है। अभी आप ये समझ लो कि जब भी आपको कोई एचटीएमएल एलिमेंट सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट में, आईडी के थ्रू ऐसे करना। ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, ये इसको वैसे मेथड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, आप खुद देख सकते हो, एलेक्स बदल के हो गया अलीना, बदल के हो गया एलेक्स अपने आप। ठीक है। अब मैं यही चीज कट करूंगी और हेड में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आज ही बताया स्क्रिप्ट टैग हेड में भी डाल सकते हो, बॉडी में भी डाल सकते हो। मैंने वही स्क्रिप्ट टैग कट किया और अब हेड में ऐड कर दिया। मैंने स्क्रिप्ट टैग जो बॉडी में था वो कट करके हेड में ऐड कर दिया। ठीक है। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। अब आप देखना अलीना आ रहा है, एलेक्स आ ही नहीं रहा है, आप खुद देखो। अलीना तो आ गया बट एलेक्स नहीं आ रहा। अलीना जो पी टैग में था वही आ रहा है, एलेक्स नहीं आ रहा। हालांकि मैंने स्क्रिप्ट टैग में सी एस जावास्क्रिप्ट कोड अभी भी लिखा हुआ है, बट स्टिल ये चेंज नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हो, स्क्रिप्ट टैग मैंने क्या किया, बॉडी से कट करके हेड में ऐड कर दिया। ठीक है। अब आप देखोगे अलीना आ रहा है, एलेक्स नहीं आ रहा। मुझे चाहिए था एलेक्स, अलीना आ रहा है। ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रही, जो हमें चाहिए थी वो नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और कंसोल पे जाके चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है मेरे कोड में। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब भी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट ना मिले कंसोल में जाके चेक करो, डीबग करो, कंसोल में जाओ। ठीक है। अब आप देखोगे जैसे ही मैं कंसोल में गई, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, इंडेक्स और एचटीएमएल लाइन नंबर 16, यू कैन सी इंडेक्स और एचटीएमएल लाइन नंबर 16। इस लाइन पे मुझे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, cannot set properties of null setting in HTML। मतलब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई, इसका बेसिकली मतलब है cannot set property, मतलब उसको वो एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसके पास आईडी डिस्प्ले है, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी सेट नहीं कर पा रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, इनर एचटीएमएल, यू कैन सी। तो वो सेट नहीं कर पा रहा है इनर एचटीएमएल, किसकी, इसकी, क्योंकि ये एलिमेंट उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो एरर पता लग गया। एरर देखो इतना सिंपल था, मुझे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट एलेक्स चाहिए थी वो नहीं आ रही थी, तो मैं कंसोल पे गई, कंसोल पे जाके मुझे पता लग गया कि ये एरर आ रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जिसकी भी वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहा है इनर एचटीएमएल, वो एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है टीम, द रीजन इज, जब आप एचटीएमएल को, तो जब भी ये फाइल, अभी पूरी फाइल वेब ब्राउजर में जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एचटीएमएल एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। जब भी ये फाइल वेब ब्राउजर में जाती है तो एक एचटीएमएल डोम क्रिएट होता है। ठीक है। तो एचटीएमएल एग्जीक्यूट होती है और फिर सीएसएस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जावास्क्रिप्ट कब रन होगी। जावास्क्रिप्ट फाइल या जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है अगर आपने हेड में डाला तो वो एचटीएमएल से पहले हो जाएगा। अगर आपने बॉडी के एंड में, बिल्कुल बॉडी जब खत्म हो रहा है उसके पहले डाला है, तो वो एचटीएमएल के बाद होगा। दैट्स द डिफरेंस। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट टैग को हेड सेक्शन में डालोगे तो वो एचटीएमएल, मतलब अभी आप लोग ये देख रहे होगे कि बॉडी एलिमेंट तो यहाँ लिखा हुआ था पी टैग,
आईडी नहीं मिल रही। आप ये सोचो ब्राउजर के अकॉर्डिंग HTML अभी लोड नहीं हुई है, HTML के ये p टैग अभी ब्राउजर का पार्ट नहीं बना, ठीक है, बिफोर दिस। तो इस जब भी आप स्क्रिप्ट टैग हेड सेक्शन में डालोगे, इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट फाइल HTML ब्राउजर में लोड होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो गई, जिसकी वजह से इसको ये एलिमेंट नहीं मिला और एरर आ रहा था। यही चीज आप जब बॉडी एलिमेंट के एंड में डालते हो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि HTML पहले सारे HTML लोड होगी और फिर स्क्रिप्ट टैग आएगा, जावास्क्रिप्ट फाइल आएगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने इसको ऐसे भी कर दिया ना कि आपने बीच में डाल दिया, डाल सकते हो, तब भी आपको अभी भी आपको अलीना देगा, क्योंकि इस केस में भी स्क्रिप्ट टैग पहले एग्जीक्यूट हो रहा है p टैग से। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि आपको जनरली क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग को एंड जहां पे भी बॉडी एलिमेंट खत्म होता है बिल्कुल उसके एंड में डाल देना, ठीक है। अब आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगी, अब आपको एलेक्स मिलेगा, ठीक है। और यही डिफरेंस होता है स्क्रिप्ट टैग को हेड और बॉडी में डालने का, क्योंकि जनरली आप देखोगे आपकी वेबसाइट में है जो HTML और जावास्क्रिप्ट है वो डिपेंडेंट हुई है, जैसे यहाँ पे ये डिपेंडेंट है डेटा चीज पे, ठीक है। तो जब आप स्क्रिप्ट टैग को हेड में डाल देते हो तो वो HTML ब्राउजर के अकॉर्डिंग HTML एग्जीक्यूट होने से पहले, एलिमेंट्स लोड होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, बहुत बारी एक्सपेक्टेड आउटपुट या डेटा चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं एज ए गुड प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट टैग को हमेशा एंड ऑफ द बॉडी, जहां भी बॉडी एलिमेंट खत्म हो रहा है उसके बिल्कुल एंड में डाल देते हैं। या तो आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगा स्क्रिप्ट टैग या फिर यहाँ पे। ऐसे मत करने लग जाना कि p टैग यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐड कर दिया, अगेन जावास्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी p टैग से, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे करना है, और यही डिफरेंस होता है स्क्रिप्ट टैग का हेड और बॉडी में डालने का। तो एज अ गुड प्रैक्टिस आपको हमेशा यहीं पे डालना है एंड में, जहां भी बॉडी एलिमेंट खत्म हो रहा है उसके जस्ट पहले, ठीक है। अब क्या होगा, पहले HTML लोड होगी पूरी ब्राउजर में, फिर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है सबको? जब आप स्क्रिप्ट टैग को हेड में डालते हो बॉडी में क्या डिफरेंस आता है? अब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे स्क्रिप्ट टैग जो आपकी जावास्क्रिप्ट पार्ट है, जो HTML पे में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब HTML जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा चेंज या डिपेंडेंसी नहीं है, उस केस में आप हेड डाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग कभी नहीं आएगा, आएगा। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोई कोड पैरेलली रन हो रहा है, HTML पे डिपेंडेंट नहीं है, तब आप स्क्रिप्ट टैग में हेड में डाल सकते हो। अदरवाइज आपको हमेशा यहीं पर ही डालना है। आप ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट उठाओगे आपको स्क्रिप्ट टैग एंड में यहीं पे मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल जहां पे बॉडी खत्म होता है उसके बिल्कुल पहले। यहाँ पे कोई एलिमेंट डाल सकते हो, मैं ये नहीं कह रही नहीं डाल सकते, मत डालना, लेकिन कोई भी चेंज करोगे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हेड सेक्शन में हम कब डालेंगे स्क्रिप्ट है, तो यस, कोई जावास्क्रिप्ट फाइल कब लिंक करेंगे, जब HTML और जावास्क्रिप्ट पैरेलली रन हो रहे, कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे की, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लिखे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये जितना भी था ना अभी तक कि इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक थोड़ा बता दिया मैंने, ठीक है। अब आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले टॉपिक शुरू हो जाएंगे। अब मैं आप मतलब इसके बाद हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स, लूप्स, इफ एल्स, फंक्शंस, ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टॉपिक पढ़ते हो सेम पढ़ने वाले, ठीक है। तो वेरिएबल्स बताने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास दो बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। एक प्लास्टिक कंटेनर है ये और एक प्लास्टिक कंटेनर है ये, ठीक है। एक में मैंने डाल दिया शुगर डाल दिया सपोज, और एक में मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। एक में मैंने शुगर डाल दिया, एक में मैंने सॉल्ट डाल दिया। इस कंटेनर का नाम ए है, इस कंटेनर का नाम बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुगर डाल दिया टीम, यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया। इस कंटेनर का नाम ए है, ठीक है, और इस कंटेनर का नाम बी है, सिंपली। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मुझे टी या कॉफी बनानी है तो मैं कौन से कंटेनर को बोलूंगी, कौन सा कंटेनर को उठाऊंगी, ए और बी? अगर मुझे टी या कॉफी बनानी है मैं ए कंटेनर को उठाऊंगी या बी कंटेनर? टेल मी। मैं ए टी या कॉफी बनानी है, ए कंटेनर को उठाऊंगी या बी? ए में शुगर है, बी में सॉल्ट है।
व्हाट अबाउट अदर्स? ऋषभ, तेजवीर, आव्या। अगर मुझे टी या कॉफी बनानी है, मैं कौन से कंटेनर को बोलूंगी, ए को या बी को? ए। ठीक है, ए। अगर मुझे पास्ता बनाना है, फिर मैं कौन से बॉक्स और कंटेनर को बुलाऊंगी, ए को या बी को? अगर मुझे पास्ता बनाना है तो मैं ए कंटेनर को बोलूंगी या बी को? बी। ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर वेरिएबल्स आर। वेरिएबल्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ठीक है। जो भी आपको वैल्यू चाहिए, आप अब वेरिएबल्स होगी ए और बी की तरह कंटेनर्स। ठीक है। अब ए और बी है जैसे कंटेनर, वैसे ही वेरिएबल्स होते हैं। और इनमें कोई वैल्यू आ जाएगी, जैसे शुगर और सॉल्ट डाला वैसे ही उसमें कोई वैल्यू आ जाएगी। और जब भी आपको जो भी वैल्यू चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग आप उस कंटेनर को, वेरिएबल को कॉल कर लोगे। सिंपल। ठीक है। सो कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ठीक है। अब मैं बताती हूँ वेरिएबल्स बनाने कैसे। जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोग यूज करते हो इंट, कैर, फ्लोट, राइट? ऐसे यूज करते हो इंट, फ्लोट, कैर, डबल इंट और डबल फ्लोट, समथिंग लाइक दैट, ऐसे यूज करते हो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपके पास सिर्फ एक वैर कीवर्ड होता है। ठीक है। ये वैर कीवर्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। अब यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट इतनी इंटेलिजेंट होती है, ठीक है, कि आपको इसमें सोचने, आप इंट इंट वगैरह कुछ नहीं लगता, इसमें है ही नहीं ये कॉन्सेप्ट, सिंपल वैर कीवर्ड होता है। दैट्स ए वैर फर्स्ट, दैट्स इट, वैर फर्स्ट। तो वैर कीवर्ड और आपके वेरिएबल का नाम, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज नहीं होगा कि सपोज यहाँ पे वैर फर्स्ट में लिखा, राइट, वैर फर्स्ट, यहाँ पे से कुछ भी यूज नहीं होगा कि इसमें इंट लगा देते, फ्लोट लगा देते अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे शुगर लिया और सॉल्ट लिया, राइट, शुगर की, अब क्या है कि शुगर एंड सॉल्ट आर लाइक वैल्यूज, ए एंड बी इज लाइक द वेरिएबल नेम। ठीक है। अब शुगर की टाइप, अब ये जो वैल्यू आ रही है इनकी टाइप भी तो डिफरेंट होगी। शुगर आ रही है तो वो क्यूबिकल फॉर्म, सॉरी डाइस फॉर्म में, छोटी छोटी क्यूबिकल फॉर्म में होती है। सॉल्ट इज मोर ऑफ अ पाउडर्ड फॉर्म। सिमिलरली जो वैल्यूज आ रही है उसकी भी कोई टाइप होगी, राइट? तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंट, फ्लोट, कैर का, आप सिर्फ वैर कीवर्ड यूज करते हो। जावास्क्रिप्ट खुद देख लेगा कि कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे ना अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे एक लेटर कॉन्स्ट भी होता है। इस वैर की जगह ना लेट भी यूज कर सकते हो आप लोग, कॉन्स्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैं वो अभी इसलिए नहीं पढ़ा रही, वो 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि 1995 में जो जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी वो पढ़ा रही हूँ। जब ES6 पे जाएंगे ना, रिएक्ट से पहले जावास्क्रिप्ट जब खत्म हो जाएगी, हम लोग ES6 पढ़ेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट का 6th वर्जन, रिएक्ट से पहले। तब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है। तब मैं आप लोगों को लेट एंड कॉन्स्ट बता दूंगी। इंटरव्यू में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लेट, कॉन्स्ट, वार का डिफरेंस। तीनों में ऑब्वियसली तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन मैं आपको कब बताऊंगी वो, लेट और कॉन्स्ट, जब ES6 पढ़ेंगे। ठीक है। अभी नहीं मैं बता रही, अभी हमसे वैर पढ़ रहे हैं। तो अब आप मान के चलो, फिर वैर कीवर्ड है, स्पेस फर्स्ट, इसको बोलते हैं डेक्लरेशन, इसको कहते हैं डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है। और जब आप वैल्यू लिख दोगे फर्स्ट इक्वल टू एलिना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं असाइनिंग अ वैल्यू या फिर इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं असाइनिंग अ वैल्यू या फिर इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो हम लिखते हैं वैर फर्स्ट, वैर फर्स्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम, वैर कीवर्ड वेरिएबल नेम। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा फर्स्ट इक्वल टू अलीना, तो मैं बोल रही हूँ अलीना किस में जाके स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट में। तो इसका मतलब जो अलीना है वो एक वैल्यू है, राइट साइड पार्ट इज ऑलवेज वैल्यू, लेफ्ट साइड इज योर वेरिएबल नेम। ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इन दोनों को आप एक लाइन में भी लिख सकते हो ऐसे, वैर ए इक्वल टू लेट्स से शुगर। ठीक है। जो ये लिया था ना यहाँ पे शुगर और सॉल्ट का ये एग्जाम्पल है, where a is equal to शुगर। अब इस शुगर को मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट शुगर, क्योंकि फिर वो वेरिएबल बन जाता है ना। हम कैसे बोल पा रहे हैं वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू सिंगल से, अब ये शुगर है वो अल्फाबेट है, तो ऑब्वियसली मेरे को इसको रैप करना पड़ेगा, इट्स अ स्ट्रिंग, तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको आप ये दो एक्स्ट्रा लाइन, दो सेपरेट लाइन लिखिए, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि इसको बोलते हैं डेक्लेरेशन,
और इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आगे जाके टर्म्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, एज बना सकते हैं। तो अब मैंने कहा था कि जो अब ये जो वैल्यूज आ रही है, ये क्यूबिक, शुगर इज क्यूबिकल, सॉल्ट इज पाउडर, तो वैसे वैल्यूज है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, कि जो वैल्यू आ रही है उसकी भी कोई टाइप है। अब जावास्क्रिप्ट आपकी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद देख लेगी कि क्या टाइप आ रही है, उसको कोई यहाँ पे एंड फ्लोट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हो। अब आप कह सकते हो वेरिएबल्स आर डेटा कंटेनर्स विच विल स्टोर सम वैल्यूज। तो शुगर किस में स्टोर होगी, ए में। 20 किस में स्टोर होगी, एज में। आप खुद देख सकते हो, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट यूजेस var कीवर्ड, एन इक्वल साइन इज यूज्ड टू साइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। तो ये वैल्यू यूज होगी 20, एज में चली जाएगी। शुगर किस में हो जाएगी, ए में। अलीना किस में चला जाएगा, फर्स्ट में, ठीक है। और वेरिएबल का नाम आप देख सकते हो कि मैंने कैसे रखा है। एंड ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। मतलब कि आप ऐसे मत करने लग गए ना, var एज इक्वल टू 90। अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एज इक्वल टू 20, तो वापस इसको डिक्लेयर मत करना। एरर नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आता। जावास्क्रिप्ट में अगर आप var कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो उसको दोबारा बना सकते हो, कोई एरर नहीं आता, ठीक है। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ यू यूज यूनिक नेम्स। अब एक तो पर्सपेक्टिव हो गया कि जावास्क्रिप्ट की जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है, ये वैल्यूज, ये कंटेनर्स है, तो ये इसमें जाके स्टोर हो रही है। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे काम करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। अब मैंने बताया डिस्प्ले के चार वेज हो गए, ठीक है। वेरिएबल तो बना दिया, इसको डिस्प्ले भी तो कराना है। तो अलर्ट में डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ए। तो अब आप अपने दिमाग में रखना कि मैं जब यहाँ ए लिख रही हूँ ना, तो मैं ए वर्ड को नहीं बुला रही, मैं शुगर को कह रही हूँ यहाँ पे, तो शुगर आना चाहिए। आप खुद देख सकते हो शुगर आ रहा है। ये चीज अपने दिमाग में प्लीज ध्यान से रखना कि वैल्यू से ए इज इक्वल टू शुगर। तो मैं ए यहाँ पे सिर्फ क्या कर रही हूँ, वेरिएबल का नाम लिख रही हूँ। वैल्यू मतलब जब आप यहाँ ए लिख रहे हो ना, आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मैं शुगर बुला रही हूँ। बेसिकली मुझे यहाँ शुगर डिस्प्ले कराना था, इसलिए मैंने ए लिखा, क्योंकि शुगर किसमें स्टोर है, ए। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल के नेम्स इंग्लिश नेम्स होते हैं, तो कभी कभी लिखते लिखते हम इतना ज्यादा उस चीज में चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें वैल्यू, जब हम ए लिख रहे हैं हम बेसिकली वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। तो वेरिएबल सिर्फ एक नाम है, उसको दिया है, वैल्यूज में शुगर ही होगी। जब मुझे टी या कॉफी बनानी होगी, मैं सिर्फ ए कंटेनर को उठा रही हूँ, वैल्यू तो मैं शुगर ही डालूंगी ना, ए थोड़ी ना डालूंगी टी या कॉफी में। ये चीज का ध्यान रखो। एक पर्सपेक्टिव हो गया कि मैंने शुगर को ए में स्टोर करा दिया। सेकंड हो गया कि जब मैं ए को लिख रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ए वर्ड बेसिकली क्या किसको रेफर कर रही हूँ, शुगर। जब मैं यहाँ कंसोल करा रही हूँ एज, तो मैं किसको कर रही हूँ, एज वेरिएबल विच के इसके अंदर 20, मतलब यहाँ पे मैं एज अपने माइंड में सोचना, मैं लिख तो एज रही हूँ, पर डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 20, ठीक है। तो आप देखोगे कंसोल में 20 आ जाएगा, 20 आ गया। देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 13, आप खुद देख सकते हो, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 13। तो जब मैं यहाँ एज लिख रही हूँ, एज ही वर्ड का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल, मतलब इनडायरेक्टली मैं यहाँ 20 एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। डिस्प्ले यूआई में भी करा सकते हैं, तो एक और पी टैग बना लेते हैं, आईडी लिख देते हैं सैंपल, ठीक है। अभी मैं यहाँ कुछ नहीं डाल रही, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिलेक्ट द एलिमेंट विद आईडी कॉल्ड सैंपल, ठीक है। डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू फर्स्ट, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट, आप लोग खुद देख सकते हो फर्स्ट आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सैंपल डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब यूआई पे क्या दिखना चाहिए, स्पी टैग में अलीना, आप खुद देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो अलीना आ गया, अलीना आ गया। क्यों, क्योंकि अलीना किस में स्टोर था, फर्स्ट में। तो जब यहाँ पे आप फर्स्ट लिख रहे हो, फर्स्ट ऐसे लिख दोगे तो फिर तो फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी ना। फर्स्ट वेरिएबल कर रही, तो जब मैं यहाँ वेरिएबल लिख रही हूँ, आपके दिमाग में नीचे मैं अलीना चाहती थी इसलिए फर्स्ट लिख, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को डिस्प्ले कराने के बेस बताए थे, वो मैंने आपको यहाँ दोबारा से बता दिया कि वेरिएबल कैसे डिस्प्ले करा सकते, डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स।
अब डॉक्यूमेंट और राइट इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो आपको यूज भी नहीं करना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है। लेट्स से मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रही हूँ, ठीक है। अब आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो वहां पर आप ये मान के चलो कि जब भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो हर प्रोडक्ट पे ना आप जीएसटी वैल्यू देते हो, जैसे कि क्लोथिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब ये जब भी बजट निकलता है फर्स्ट फेब को, तो हर जीएसटी वैल्यू, आई मीन नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैल्यू हर साल वेरी करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो बजट था उसमें जो क्लोथ के ऊपर जीएसटी था दैट वाज 10%, ठीक है। अब वो इस साल 12% हो गया, जीएसटी बदल गया। तो अभी आप मान के चलो जब भी आप ई कॉमर्स में सपोज आपने कोई भी क्लोथ्स देखा, ठीक है, कोई भी गारमेंट देखा, उसकी जो वैल्यू है, जब भी सपोज आपने 500 वैल्यू देखी, तो जो 500 देखते हो ना टीम, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है। तो जब आप कार्ट पे जाते हो तो वो जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करता, पहले से ही एडेड होता है, ठीक है, इंक्लूसिव होता है। तो अभी सपोज मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 450 मैंने रखा, प्लस मेरे को जीएसटी उस पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरी वेबसाइट है, तो मैंने 10% ऐड कर दिया, ठीक है। अभी सपोज मेरे पास 5-6 कैटेगरीज होगी, ठीक है, यहाँ पे 10% हो गया। एक और प्रोडक्ट था, मैंने 600 प्लस 10% कर दिया। एक और प्रोडक्ट था, वहां पे मैंने 400 प्लस या 420 प्लस 10% कर दिया, ठीक है। अभी मुझे पता है मैं ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन वो भी खरीदते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ खरीदते हो, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन भी कुछ खरीदते हो ना, अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसमें 18% जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे इंडिया में। तो तो वो आपको पे करना पड़ता है। तो जब अगर सपोज फ्रिज का प्राइस 30,000 देख रहे हो तो उसमें 30,000 में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, आई मीन अगर आप लोगों को पता हो, इसी वजह से ना, अगर आप लोगों ने कभी बिजनेस उसमें कभी देखा हो, परचेजिंग देखी हो, तो अगर आप ऑनलाइन सपोज अमेजोन में परचेज करते हो, कुछ भी बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो, सपोज आपका ऑफिस है, आपको उसके लिए फ्रिज खरीदना है, तो आप उसमें जीएसटी रिबेट ले सकते हो कि आप जीएसटी की वैल्यू आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है, वो होता है। तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने क्लोथ का एग्जांपल लिया, लेट्स स्टिक टू द क्लोथ ओनली, तो 10% जीएसटी था। अब इस साल सपोज 12 हो गया, तो अब मेरी वेबसाइट में तो मैंने 10 डाला था, मुझे आइडियली उसको 12 करना चाहिए, क्योंकि उसमें वरना गवर्नमेंट मुझसे 12% लेगी तो नुकसान मेरा ही होगा, राइट। अगर मैं उसको 10 ही रखूंगी तो मुझे आके हर लाइन पे 12 भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये वे हो गया कि मैं हर लाइन पे जाऊं, जहां जहां यूज किया तो उसको 12 करूँ, ठीक है। सेकेंड वे हो गया कि मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देती हूँ जीएसटी क्लोथ, ठीक है। मैं यहाँ वेरिएबल बना देती हूँ जीएसटी क्लोथ, सॉरी, और मैं उसमें 10 कर देती हूँ, ठीक है। और मैं इसकी जगह लिख देती हूँ जीएसटी क्लोथ, ठीक है, मैं जीएसटी क्लोथ लिख देती हूँ इसकी जगह। अब गवर्नमेंट ने इस साल 12 कर दिया, तो मुझे यहाँ पे आना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको 14 कर दिया, मुझे यहाँ पे आना है और इसको चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताओ कौन सा बेटर वे है, वेरिएबल बना के करना है या मैनुअली हर लाइन पे जाके चेंज करना, विच इज अ बेटर ऑप्शन, मैनुअली हर लाइन पे जाके चेंज करना या वेरिएबल को वेरिएबल में स्टोर करा के वेरिएबल में जाके, क्योंकि वेरिएबल में, हाँ, वेरिएबल इज अ बेटर ऑप्शन। आपको देखो वेरिएबल में सिर्फ एक जगह चेंज करना था, अदरवाइज हर लाइन पे जाके करना पड़ता। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है कि वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं। एक तो हो गया मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, तो जब मैंने वैल्यू स्टोर कर ली तो मुझे जब भी वो वेरिएबल चाहिए होगा मैं उसको कॉल कर लूंगी। नेक्स्ट चीज है, बहुत बारी ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यू, एक वेरिएबल आपको, अब जैसे 20 था, मुझे 4 जगह चाहिए, तो मैं 4 बारी 20 थोड़ा ना बनाऊंगी, या 4 बारी मैनुअली थोड़ा ना लिखूंगी, मैं एज कॉल कर दूंगी। तो ये दूसरा वे है देखने का कि वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं हम। वेरिएबल्स क्या है, डेटा कंटेनर्स है। जब जब वो आपको वैल्यू, अब जैसे कलर्स हो गया, ठीक है, सीएसएस में आप लोग कलर्स देखते हो, मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप सीएसएस में भी पता है कलर्स के लिए वेरिएबल बना सकते हो, सीएसएस में भी कलर्स के लिए वेरिएबल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि एक कलर वेबसाइट का, अब एक कॉमन कलर होगा ना आपकी वेबसाइट में, जैसे अमेजोन है, वहां पे ऑरेंज वाला कलर कॉमन है, फेसबुक में ब्लू वाला कलर कॉमन है, तो जो हर जगह यूज किया है, हर बारी थोड़ा वो कलर लिखते रहते हो, अब वेरिएबल बना देते हो और उसमें डाल देते हो। अब इन फ्यूचर आपने कलर बदल के ब्लू से कुछ और करना है, पिंक करना है, तो आपको सिर्फ एक ही जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव है कि वेरिएबल्स की यूज रहता है। एक तो हो गया वैल्यू स्टोर करनी है,
सेकंड है एक वैल्यू को बारी बारी भी यूज कर रहे हैं तो भी हम उसको स्टोर करेंगे। आई होप वेरिएबल्स क्लियर हो गए हो सबको। आई मीन आपने ऑलरेडी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, बट आई होप नाउ इट्स क्लियर वेरिएबल्स। ठीक है, और जब भी बेस्ट तरीका है ये वाला एग्जांपल याद रखने का, ये शुगर एंड सॉल्ट, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ नेमिंग कन्वेंशन लिखी है। जावास्क्रिप्ट ना केस सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, तो इसको आप कैपिटल डिस्प्ले कराते हुए कैपिटल एफ नहीं कर सकते। मतलब ये जो फर्स्ट है और ये जो फर्स्ट है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये फर्स्ट अब अलग हो गया क्योंकि इसका एफ कैपिटल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखना, आपको लाइन नंबर 15 पे एरर मिल गया, मैं दिखाती हूँ, आप लोग खुद देखना। एक काम करते हैं, कहीं और चेंज कर देते हैं। ये ए था ना, ए, इसको कैपिटल ए कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप लोग खुद देखना, ये है अलर्ट ऑफ ए लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने डिक्लेयर स्मॉल ए किया था, यूज में कैपिटल ए कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग खुद देखना, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे कंसोल में लाइन नंबर 13 ए आई नहीं रहा। ठीक है, अब अलर्ट नहीं आ रहा, मैंने अपना कोड रन किया, मुझे अलर्ट ऑफ ए, रिफ्रेश कर रही हूँ, अलर्ट में ए आई नहीं रहा, शुगर आई नहीं रहा। ठीक है, अब मेरे को पता है ये चल नहीं रहा, मैं किस पे जाऊंगी, इंस्पेक्ट पे, हमेशा कंसोल में जाके चेक करना है। तो आप देख सकते हो स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 13, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 13, आप देख सकते हो ए इज नोटिफाइड, मुझे एरर आ रहा है, ए इज नोटिफाइड। तो जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर डिक्लेयर स्मॉल ए किया तो यूज भी स्मॉल ए करना है। गलती से उसको एक भी लेटर इधर का उधर अल्फाबेट भी कर दिया, मतलब कैपिटल्स भी कर दिया, तो वो दूसरा वेरिएबल बन जाता है। और आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे, अगर लाइन नंबर 13 पे एरर आया, आपका कोड वहीं रुक गया। 14 पे कंसोल एज था, यहाँ पे नहीं आ रहा। अब देखो 13 पे आपका एरर आया और वो आपका कोड की एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक गई। 14 उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ये जो लाइन नंबर 14 थी, देखो कंसोल में एज नहीं आ रहा, तो लाइन जहाँ पे एरर आता है जावास्क्रिप्ट में वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ना, क्योंकि लाइन की जैसे जावा में अगर आप देखोगे या सी प्लस प्लस में देखोगे, वहां पे आपकी पहले फाइल कंपाइल होती है, कंपाइल होके एक दूसरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, फिर आप जाके उसको, जैसे जावा में ना जार फाइल्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो जाके रन होती है। पहले कंपाइल होती है ये पूरी फाइल जावा सी प्लस प्लस की केस में, और फिर आपकी रन होती है। यहाँ पे आप देखोगे जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली हो रही थी, यहाँ पे इसको एरर मिल गया तो रुक गई वहां पे, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद जो भी लिखा होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जहाँ पे एरर आया वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दूंगी। मुझे पता है ये मैंने मतलब मिस्टेक क्या की थी, इसको कैपिटल ए कर दिया। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस में देखो ना, ये अगर फर्स्ट है, ये ए है स्मॉल, इसका कैपिटल ए भी कर दोगे ना, आई थिंक सो वहां पे दिक्कत नहीं होती है। यहाँ होती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम है ना, एफ स्मॉल, यहाँ पे एफ कैपिटल, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है जावास्क्रिप्ट के। नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नेम लिख रहे हो ना, कुछ भी मत लिख देना ऐसे, जैसे फर्स्ट नेम लिखना है तो ऐसे मत लिख देना। जब भी आपके पास ऐसा वर्ड वेरिएबल जहाँ पे दो वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो सेकंड वर्ड फर्स्ट स्मॉल में आएगा, सेकंड वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना। अब फर्स्ट नेम हेलो होता तो एच ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर लिखना। अब आप अंडरस्कोर, डॉलर साइन ये सब यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अंडरस्कोर कर सकते हो, डॉलर साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल नेमिंग। रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, मतलब वैर कीवर्ड लिखा, अब वैर ही नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि वेरिएबल का नाम ही वैर नहीं बना सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैर रिजर्व कीवर्ड है। अब वेरिएबल का नाम ही वैर नहीं रख सकते हो। और ऑलवेज ऐड स्पेस, मतलब ये जो ऑपरेटर है इक्वल साइन, इसके अराउंड स्पेस ऐड कर, दिस इज नेमिंग कन्वेंशन। अब कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट इज इंटरैक्टिव ग्लू बिटवीन एचटीएमएल सीएसएस, इट विल मेक योर वेबसाइट डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव। ठीक है, एक तो ये आंसर करना है, प्लस इसके साथ आपको 3 वर्ड्स और ऐड करने हैं, सिंक्रोनस, सिंगल थ्रेडेड, इंटरप्रेट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब मैं बताती हूँ ये क्यों मेंशन करना है और ये होते क्या। सिंक्रोनस का मतलब है सिंक में एग्जीक्यूट होती है। मैंने अभी आपको कहा ना जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन, पहली बात है सिंगल थ्रेडेड है, एक बारी में एक ही चीज एग्जीक्यूट होती है। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब ये हो जाएगी फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, एक एक लाइन पिक करता है ये।
जैसे जावा में क्या होता था, पूरी फाइल एक बारी में कंपाइल होकर रन होती थी। जावास्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेट लैंग्वेज। इंटरप्रेट क्या होती है, सिंगल थ्रेडेड होती है, एक लाइन को पिक करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को एक एक करके करेगा। और जहां भी एरर, सपोज 13th पे एरर आ गया, मैंने ये कैपिटल कर दिया, ये एरर आ गया, तो वहीं पे रुक जाएगा, ये वेट करेगा, ये रिजॉल्व होगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये एक एक बारी एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सो सिंक, और सिंक्रोनस क्या है, सिंक में चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 15th वाली लाइन 13 से पहले एग्जीक्यूट होती है। जो 15th वाली लाइन है 13 से पहले कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिंक्रोनस है, ये सिंक में चलेगा, लाइन बाय लाइन चलेगा। ठीक है। सो सिंक्रोनस मतलब एक बारी में एक ही चीज एक बारी में एक ही चीज एग्जीक्यूट करेगा और लाइन बाय लाइन जाएगा। ठीक है। सिंगल थ्रेडेड, वन लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, वन फंक्शनैलिटी विल बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम एंड इंटरप्रेट लैंग्वेज। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, एक तो ये मेंशन करना ही है कि जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाना है। साथ में ये भी मेंशन करना, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेट लैंग्वेज। ये कंपाइल लैंग्वेज नहीं होती है, वैसे कंपाइल लैंग्वेज नहीं होती है। लेकिन आजकल ना जो ब्राउजर्स हो गए, जैसे V8 इंजन हो गया, कि अगर मैं V8 इंजन की बात करूं, मैं ना आप लोगों को किसी लेक्चर में ना पूरा फ्लो बता दूंगी कि जब जावास्क्रिप्ट फाइल ब्राउजर में जाती है तो एक 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 स्टेप करके होता गया। ठीक है, बता दूंगी मैं वो, बट लाइक जैसे हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तब बता दूंगी। बट वैसे एक चीज का ध्यान रखना कि जो मतलब आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वैसे जावास्क्रिप्ट कंपाइल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन आजकल ना जो जैसे V8 इंजन, गूगल क्रोम हो गया, ये वाले ब्राउजर्स ना यूज करते हैं कंपाइलर्स, क्योंकि उनको अपने ब्राउजर की एफिशिएंसी बढ़ानी होती है। ठीक है, तो वो यूज करते हैं। वैसे आपको इंटरव्यू में पूछे तो स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेट लैंग्वेज ही बोल, कंपाइल लैंग्वेज मत बोल देना, है नहीं वैसे ये। ठीक है। So JavaScript is synchronous. It will run in sync. One functionality will be executed at a time. Single threaded, one line will be executed. Line by line it will execute and it is a interpret language. अगर compile होती ना तो पहले पूरी फाइल को एक ऐसी फाइल में कन्वर्ट करता है, जैसे जावा में ना जार फाइल में होती है, वैसे एक फाइल में कंपाइल करता और फिर इसको रन करता। यहाँ पे क्या लाइन बाय लाइन हो रहा है, तो अगर लाइन नंबर 13 पे कोई एरर आ भी गया ना तो वहां रुक जाएगा ये। ठीक है। केस सेंसिटिव और कंट्रोल फ्लो होता है इज द ऑर्डर इन विच द कंप्यूटर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स इन अ स्क्रिप्ट। तो इंटरव्यू में कोई व्हाट इज जावास्क्रिप्ट पूछे तो ये सारा एक्सप्लेन करना, डायनामिक, इंटरैक्टिव और ये सारा। ये टर्म क्लियर होगी सबको, सिंक्रोनस, स्क्रिप्टिंग, सिंगल थ्रेडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? अर्शदीप, आव्या, दिव्या, ऋषभ, साहिब, सुखप्रीत, यहाँ तक क्लियर है सबको? Now next thing we have is operator। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि हम लोगों ने, आप लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टॉपिक्स पढ़े होंगे वही मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ा रही हूँ, सेम ही है, बस जावास्क्रिप्ट के हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि सिंटेक्स का डिफरेंस है, जैसे इंट फ्लोट नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास 5 टाइप के मेन, इसके अलावा बिटवाइज एंड ऑल भी होता है, बट बेसिक ये 5 आपको पता होने चाहिए, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, स्ट्रिंग, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। ठीक है, हम वन बाय वन करेंगे। तो कोई मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताएगा क्या होते हैं? तो मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताएगा क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा बाकियों में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? यस, करेक्ट। प्लस, माइनस, डिवाइड, परसेंटेज, परफेक्ट, यही सेम आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है। मैंने ये लाइन कमेंट करी है अलर्ट वाली, अदरवाइज अलर्ट बारी बारी आता रहे। ठीक है। तो यही अरिथमेटिक होते हैं। अब मैं यहाँ पे ना डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नो वरीज। अभी के लिए ना आप ये मान लो, ये मेरी स्ट्रिंग है और ये मेरा नंबर है, ये दो डेटा टाइप्स पे ही मैं ऑपरेटर्स लगाऊंगी, वैसे भी और भी ऑपरेटर्स लगते भी नहीं है यहाँ पे। तो प्लस माइनस सिंपली मैं लिख दूंगी, आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, वैर एड इक्वल टू 10 प्लस 20। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, वैर एक्स इक्वल टू 10, वैर बी इक्वल टू, ओके। आप ना एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हो। सपोज आपके पास ऐसी सिचुएशन हो ना, इसको हटा देते हैं, वैर एक्स इक्वल टू 10 और वैर वाई इक्वल टू 20, ऐसी सिचुएशन है,
तो आप इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, आप एक सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हो कॉमा सेपरेट। ठीक है, तो मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मैं लिखूंगी वैर एड इक्वल टू 10 प्लस 20, एक तो ये हो गया। ठीक है, और फिर आप सिंपली कंसोल में जाके एड डिस्प्ले कराओ, ऐसे एक तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो ना, अब ध्यान से समझना, मैंने लिखा वैर एड इक्वल टू 10, सॉरी एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, तो एड मैंने एक नया वेरिएबल बनाया इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स का मतलब है, अपने दिमाग में आ जाता है, एक्स का लिखने का मतलब है मुझे 10 चाहिए, वाई का यहाँ लिखने का मतलब है मुझे 20 चाहिए। तो 10 प्लस 20 30, 30 जाके किस में स्टोर हो जाएगा, एड में। कंसोल क्या होगा, 30। ठीक है, अब इसको मैं एड में क्या है, एक्स प्लस वाई है, इसको कट करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक ही बात है। तो ये हो गया एड। तो मैं यहाँ पे बस ये बता रही हूँ कि कुछ भी हो, वैल्यू सिर्फ डायरेक्टली ऐसे ही नहीं हो सकती कि शुगर है, एक्स प्लस वाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट भी हो सकती है, जिसमें भी स्टोर होगा वो वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स कर देती हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, अब डिवाइड और उसमें दो टाइप होती है। ठीक है, एक होता है मॉड्यूलस और एक होता है डिवीजन। यहाँ पे ना दो होते हैं, एक आपके पास डिवीजन होता है, ठीक है, एक आपके पास मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस वो परसेंटेज वाला। अब एक्स वाई स्लैश एक्स तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब वाई मॉड्यूलस एक्स ऐसे आएगा। अब मुझे कोई बताएगा कि किसी को यह पता है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है मॉड्यूलस और उसमें डिवीजन में, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों करते तो डिवाइड ही है, पर डिफरेंस क्या होता है, एनीवन हु कैन टेल मी। मॉड्यूलस गिव्स रिमाइंडर, करेक्ट, इसमें रिमाइंडर आता है, इसमें डिवाइजर आता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ लिख के यहाँ पे। जैसे हम लोग ऐसे स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे भी कह सकते हो, ऐसे डिवाइड नहीं करते थे पूरा लिख के, 20 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, यहाँ पे 0। ठीक है, तो जब आप स्लैश यूज करो डिवीजन, तो ये आपको डिवाइजर रिटर्न करेगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं ना क्वेश्चन, इसको डिवाइजर, ये जो वैल्यू जिसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये 2 हो गया डिवाइजर। ठीक है, और मॉड्यूलस देता है रिमाइंडर, ये इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये किससे डिवाइड की है, तो 10 को 2 से 2 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइजर हो गया और ये 0 मतलब रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्लैश वाला देता है डिवाइजर और मॉड्यूलस देता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे डिवाइजर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर। अब वैल्यूज को देख लेते हैं हम इंस्पेक्ट पे जाके। देखो आगे, 10 प्लस 20 30, ये जो 20 है ना, ये लगे, इसको रुको एक काम करते हैं, कंसोल ऐड कर देते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऐसे कर, देखो अरिथमेटिक मैंने डाल दिया। देखो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 28, 28 पे एक्स प्लस देखो 30 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, 20 माइनस 10, आप देख सकते हो 200 आ रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर ये डिवाइजर देखो 22 आ रहा है, जो मैंने अभी बताया था डिवाइजर 2, तो ये स्लैश है तो डिवाइजर आएगा। देखो 0 आ रहा है इस केस में, क्योंकि 20 मॉडुलस 10, 2 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब अगर आपको एक वैल्यू ऐड करनी है, मतलब प्लस वन, सपोज आपको लिखना है एक्स प्लस प्लस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब जब भी आपको किसी वेरिएबल में सिर्फ एक ही ऐड करना है या फिर एक ही माइनस करना है, तो अब आप यूज कर सकते हो y इज इक्वल टू वाई माइनस वन। ठीक है, तो जब भी आपको किसी वेरिएबल में एक ही ऐड करना है, एक ही माइनस करना है, तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना, अब मैंने ना, अगर आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करो, ठीक है,
मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, जावास्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट वर्क करती है। अब आपने यहाँ पे x 10 कर दिया ना, ठीक है, सपोज इससे पहले इसको फर्क नहीं पड़, मतलब इसके बाद आपने क्या किया x को, इस लाइन पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाली लाइंस 24 से पहले तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती है। तो जब x 10 डिक्लेयर किया ना तो वो 10 था, फिर y 20 हुआ, फिर उसको यहाँ यूज कर लिया, फिर मैंने x को यहाँ पे चेंज कर दिया और y को यहाँ चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ कंसोल करूंगी x और y तो डिफरेंट होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, कभी कभी होगा कि आप लोगों को लगेगा कि x की वैल्यू तो यहाँ 10 थी, अब उसमें 1 ऐड कर दिया 11 होगी, तो यहाँ पे वो 11 लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। x को मैंने 10 लिया, ठीक है, y को 20 लिया, ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट हुई, फिर 35 पे जाके x की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 10 थी, मैंने +1 कर दिया तो वो 11 बन जाएगी। तो यहाँ पे 11 नहीं लेगा, वो 10 ही लेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक जावा में ना ऐसा होता है कि आपने उसको बाद में जो भी वेरिएबल को चेंज कर दिया वो पूरी थ्रू आउट वही वैल्यू लेता है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता इससे पहले आपने उस क्या की है, यहाँ पे चेंज हुई है, क्योंकि 35 कब एग्जीक्यूट होगी, जब वो 35 पे आएगा। यहाँ पे मतलब इसके बाद अब x की वैल्यू 11 होगी, ये 20 था, y -1 19 होगी, ठीक है। यहाँ पे ये 10 और 20 ही लेंगे, तो आपको इसको भी लाइन बाय लाइन ही देखना जावास्क्रिप्ट। ऐसे मत देखना कि यहाँ पे मैंने 11 कर दिया था तो यहाँ पे भी 11 लेगा, नहीं, अगर इसको 11 चाहिए था तो यहाँ पे प्लस प्लस करते, इस चीज का ध्यान रखो। जावास्क्रिप्ट में ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा 32 पे, उसके बाद 35 पे जाके वो 11 होगा, ठीक है। अब आप देख भी सकते हो, पहली वाली वैल्यूज देखो सेम है, यहाँ पे 11 और 19 हो गया, इसके बाद अब आप x और y यूज करोगे, अगर सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया आप कंसोल डॉट लॉग ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे करोगे, अब ये 11 और 19 वाली वैल्यूज देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बदल दी है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि इससे पहले इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्या था, जिस लाइन पे जाके बदल रहे हो उसके बाद उसमें चेंजेस दिखेंगे। ओके, अब आप खुद देख सकते हो। ओके, ये 30 आएगा क्योंकि मैंने वहां से प्लस किया, यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ पे +1 कर देते हैं। अब देखो ये 31 आ रहा है, मैंने +1 कर दिया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये अरिथमेटिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट वैसे तो कोई, तो अभी मैं बताती हूँ, ऑलरेडी आपको पता ही है ये वाला, कि जो इक्वल साइन होता है ना इसको असाइनमेंट बोलते हैं, दैट्स इट। ये जो आप लोग इक्वल साइन लिख रहे हो ना ऊपर वेरिएबल बनाने में, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट्स इट। ये आई होप क्लियर ही हो गया होगा, ये मैं लिख देती हूँ, वैर कोई वेरिएबल ले लेते हैं वैल इक्वल टू 20, तो जो ये इक्वल साइन है ना इसको असाइनमेंट बोलते हैं, मतलब मैंने 20 को असाइन किया वैल पे, ठीक है। हमारे पास ना ऑनलाइन जैसे इसके लिए शॉर्टकट है ना, एक्स में अगर एक ही वन ही ऐड करना है, टू ही ऐड माइनस करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। एक हमारे पास और सिंटेक्स होता है, ऐसे अगर मुझे लिखना हो ना, वैल इज इक्वल टू वैल +5, सपोज वन की जगह, अब वन की जगह कोई और वैल्यू है, इसको पता है आप कैसे लिख सकते हो, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, वैल प्लस इक्वल टू 5। ये शॉर्टकट है, ये सिंटेक्स शॉर्टकट्स बता रही हूँ, कभी कभी आप पढ़ोगे ऑनलाइन तो आपको दिखेंगे। 20 था, इक्वल साइन को बोलते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कि 20 असाइन हो गया वैल। अब वैल में 5 ऐड करना है, वैल इक्वल टू 5 वैल +5 करना है, मतलब वैल इक्वल टू 20 + 5 25 करने है वैल की वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली सारे माइनस प्लस सबका ऐसे हो जाए, मतलब अगर आपको वैल इज इक्वल टू वैल -5 करना हो तो ऐसे, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन, ठीक है। तो कभी कभी ये सिंटेक्स शॉर्टकट आपको दिखेंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल साइन। थर्ड हमारे पास है स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग पर भी आप ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि ये मैंने अरिथमेटिक लिखा, असाइनमेंट लिखा, ठीक है। अब आप लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे ना, वहां पे स्ट्रिंग ऑपरेटर नहीं होता, आप कभी भी स्ट्रिंग्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी चीजें नहीं करते हो, है ना। आप करते हो C++ और जावा में करते हो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, आप लोगों ने पढ़े हैं कभी, किसी ने भी स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट की नहीं बात करी, वैसे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ स्ट्रिंग दो प्लस हो रही हो, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने कभी? यस टीम, यस नो, पढ़ा है आप लोगों ने कभी? जस्ट स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो,
कुछ भी, या प्लस भी कर रहे हो, लेट्स से आपने कभी देखा है स्ट्रिंग्स पे ऑपरेटर्स करते हुए? यस, नो, से समथिंग। नो, राइट, नहीं होती। ओके, आपने शायद पाइथन में देखा होगा ऋषभ। सी प्लस प्लस वगैरह में तो नहीं होती, मतलब जावा सी प्लस, पाइथन में हो सकती है क्योंकि वो भी स्क्रिप्टिंग ही है। ठीक है, हाँ पाइथन में देखियो दैट्स डिफरेंट, बट हाँ सी प्लस प्लस जावा में नहीं होती। तो इनफैक्ट अगर आप में से किसी ने पाइथन पढ़ी है ना, आपको जावास्क्रिप्ट और इजी लगेगी क्योंकि ये सिमिलर है। पाइथन एक्चुअली सिमिलर है थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के एक सारे कॉन्सेप्ट्स में, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, वहां पे भी स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है, यहाँ भी होता है, इसलिए क्योंकि वो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये भी। पाइथन अगर पढ़ी है फिर तो और ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। ओके, कमिंग बैक टू योर स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो अब जावास्क्रिप्ट में ना एक ही ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग पे कम वर्क करता है, प्लस, और कोई नहीं काम करता, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ नहीं होता। तो जब आपके पास स्ट्रिंग है, सपोज करो स्ट्रिंग मतलब एनीथिंग रैप्ड इन सिंगल कोट और डबल कोट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एसटीआर इक्वल टू हेलो कर दिया। कुछ भी अगर आप यहाँ पे स्पेस भी ऐड कर दोगे, ये सारा एक स्ट्रिंग है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है मेरे पास। ठीक है, कल डेटा टाइप्स में डिटेल में स्ट्रिंग बताऊंगी, अभी आप फोकस करो कि एक स्ट्रिंग है डबल कोट से सिंगल कोट जिसमें कुछ अल्फाबेट्स पड़े, कुछ भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है। ठीक है, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग टू। ठीक है, अब देखो मैंने कैमल केसिंग यूज किया अब नाम वर्ड। तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि अगर आपने कर दिया स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग टू, आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, अगर आप यही चीज जावा में ट्राई करोगे ना, ये सी प्लस प्लस में आपको एरर मिलेगा, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग टू, आपको कंपाइल एरर मिलेगा। जावास्क्रिप्ट के केस में वो क्या करता है, कंकैटिनेट कर देता है। तो देयर इज ओनली वन ऑपरेटर दैट वर्क्स ऑन स्ट्रिंग्स, दैट इज प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये है प्लस तो अरिथमेटिक वाला ही, बट इसको स्ट्रिंग ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप स्ट्रिंग्स पे ऑपरेट करते हो प्लस साइन के थ्रू। ठीक है, अब आप देखोगे कि एक्चुअली कंकैटिनेट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, एरर नहीं दे रहा। ठीक है, दैट मीन्स ऑन स्क्रिप्ट, ऑन जावा, इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कैन बी कंकैटिनेटेड और प्लस इज द ओनली ऑपरेटर। ठीक है, अभी सपोज मैं कोई और ऑपरेटर ट्राई करने लगी, इसमें बहुत सारे सिनेरियो, ध्यान से सुनना। इनफैक्ट स्ट्रिंग अल्फाबेटिक है, नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, वो सारा बताऊंगी। ये टॉपिक ध्यान से सुनना क्योंकि इस टॉपिक में ना, इसी टॉपिक में एक टॉपिक होता है इम्प्लिसिट कोहेजन। इम्प्लिसिट कोहेजन मतलब इम्प्लिसिटली कुछ भी डेटा टाइप बदलना, खुद से जो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप बदल रहा है। ठीक है, या टाइप कास्टिंग पढ़ा हुआ आप लोगों ने उसमें, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उसमें यहाँ पे ना एक टाइप कास्टिंग होती है कि आप मैनुअली डेटा टाइप बदल रहे हो, एक होता है कि खुद ही डेटा टाइप बदल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में ना इसको इम्प्लिसिट कोहेजन कहते हैं। तो वो इस टॉपिक में से आता है, तो ये ध्यान से सुनना, इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके। तो यहाँ पे अभी मैं सिंपल बता रही हूँ, तो यहाँ तो कंकैटिनेशन होगी, कंकैटिनेशन। ठीक है, ये कंकैटिनेट होगी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग, तो अब मैंने सोचा कि कोई और ऑपरेटर भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप लोग देखना है यहाँ पे, ये आपको नॉट ए नंबर देगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जब भी एन ए एन आए, नॉट अ नंबर आए, मतलब वो एक डेड एंड है, इसके बाद वो उसमें कोई वैल्यू नहीं दे पाए। ठीक है, सो नॉट ए नंबर इज लाइक एन ए एन, नॉट अ नंबर। ऑब्वियसली हेलो को माइनस कर ही नहीं सकते हैं वर्ड से। ठीक है, तो नॉट ए नंबर आएगा, इस मतलब सिर्फ एक ही काम करता है ऑपरेटर स्ट्रिंग पे, प्लस। ठीक है, अभी सपोज करो, अभी तो मैंने दोनों स्ट्रिंग्स ली थी, सपोज मेरे पास होता हेलो। ठीक है, हेलो प्लस 90, मेरे पास है, तो मैं नंबर और स्ट्रिंग को प्लस कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास सिचुएशन है जहाँ पे मैं हेलो प्लस 90 को प्लस कर रही हूँ, तो इस केस में भी ये कंकैटिनेट हो जाएगा, तो मुझे हेलो 90 मिलेगा, सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी मुझे देगा हेलो 90। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास स्ट्रिंग हो और प्लस हो, तो वो कंकैटिनेट ही होगा, प्लस हो स्ट्रिंग हो कंकैटिनेट ही होगा। ठीक है, अब मैं एक टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहां से बात हूँ। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस इक्वल साइन, इनको बोलते हैं ऑपरेटर। ये जो सिंबल्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, जिसपे आप ऑपरेट कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। दिस एक्स वाई इज कॉल्ड ऑपरेंड्स।
Here, STR and STR2 is called operands. Basically जैसे डॉक्टर पेशेंट्स पे ऑपरेट करते हैं ना, वैसे हम एज अ डेवलपर वेरिएबल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं. तो इन वेरिएबल्स को जब ये यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट लिखी है मैंने, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और इस पूरे को बोलते हैं स्टेटमेंट. ठीक है, ये याद रखना. अब आप लोगों को ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग ऑफ 90 प्लस 90 प्लस वर्ड. सपोज मेरे को किसी ने इसका आउटपुट पूछा. ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. ठीक है, वो रूल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. पहले पहले बता देती हूँ मैं. इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, अदर प्रोग्राम लैंग्वेजेस. ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर. प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर. ठीक है, इसका मतलब है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर. सिंपल. ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है कि प्रायोरिटी क्या है ऑपरेटर. सिंपली. अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर रूल्स है, प्लस माइनस डिवाइड. ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये अब आप ना, मैं आपको थोड़े से बेसिक रूल बता देती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड की होती है, फिर प्लस और माइनस की. आपस में इन दोनों की इक्वल प्रायोरिटी होती है. ठीक है, आपस में इन दोनों की, मतलब अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई पूछे तो सेम प्रायोरिटी है, लेकिन डिवाइड और इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है इससे. लाइक ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है. अब जैसे मैथ्स में आप लोग बॉड मास रूल फॉलो करते थे, आप लोगों को याद है बॉड मास रूल करते थे, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन. स्कूल टाइम में बॉड मास रूल फॉलो करते थे मैथ्स में. ठीक है, वैसे ही आप ये मान के चलो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यहाँ पे बॉड मास रूल नहीं फॉलो होता. आप ये मान के चलो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है वो बेसिकली जैसे मैथ्स में बॉड मास रूल फॉलो करते हैं ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज करते हैं. ठीक है, लेट मी रिपीट. जैसे मैथ्स में हम लोग बॉड मास रूल फॉलो करते थे ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं. ठीक है, इसका यूज क्या होता है, कभी कभी ना आपके पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती है इंटरव्यू में ना, आपको बोला जाता है वैर रिजल्ट इक्वल टू 10 प्लस 76 या 70 स्लैश 10. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 45 माइनस 20. ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू में ना आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दे दी जाती है. अब आपको वो पता है क्या बोलेंगे कि मैनुअली इसको कैलकुलेट करो. वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप मुझे इसको कंप्यूटर या लैपटॉप में रन करके आउटपुट बताओ. नहीं, आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. इसको बोलते हैं ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, अरिथमेटिक स्टेटमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको ये, मतलब मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस वैसे तो बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ. थोड़े थोड़े याद रखो. जैसे ब्रैकेट पहले होगा, फिर मल्टीप्लाई ये, फिर इसकी. और अगर सपोज ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस है, तो फिर हम लेते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप क्या करोगे, रिजॉल्व ब्रैकेट. ठीक है, तो मेरे को अगर मैनुअली इसको रिजॉल्व करना हो तो मैं लिखूंगी 10 प्लस, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 मिल जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 45 माइनस 20. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई और स्लैश. अब ऑपरेटर देखो कौन से हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी. तो यहाँ पे अगर 10 प्लस 140 प्लस 45 माइनस 20. ठीक है, अब आपके पास ऑपरेटर्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन से हैं, प्लस और माइनस. और जब भी प्लस और माइनस हो, आपस में इनकी प्रायोरिटी सेम होती है, तो हम उस केस में जाएंगे लेफ्ट से राइट. मतलब हम लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जाएंगे. तो हमें एक बारी में दो ही चीजें सेलेक्ट करनी होती है, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगी. ये मुझे देगा 150 प्लस 45 माइनस 20. अब फिर से क्या है, दो ऑपरेटर है, प्लस और माइनस, दोनों की प्रायोरिटी सेम है. आई विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये मुझे देगा 175 माइनस 20. तो आंसर आएगा 155. ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए 155 हम कंसोल कर लेते हैं रिजल्ट. अब आप देखोगे मुझे 155 मिलना चाहिए. नो वेट, डिड आई मिस समथिंग. सॉरी, ये 45 था. सॉरी, ये मैंने बाय मिस्टेक 25 लिख दिया, या 45 आएगा. तो ये 95 हो गया ना. अब 195 माइनस 20 175 आ. ठीक है, तो ये मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया. ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 175.
ठीक है, 48 लाइन पे आप खुद देख सकते हो, 48 175 आ गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये मेन बता रही हूँ, ये तो एटलीस्ट मिनिमम याद रखना, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई इसकी प्रायोरिटी फिर इसकी, और अगर प्लस माइनस हो तो लेफ्ट से राइट जाना है, और हमेशा एक बारी में दो ही ऑपरेंड्स को सिलेक्ट करना है, एक बारी में सिर्फ दो ही ऑपरेंड्स को सिलेक्ट किया करो। ठीक है, अब यही चीज मुझे, इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, अब क्या है, आप सबसे पहले आप लोग में स्टेप लिख देती हूँ, ऑलवेज चेक दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सबसे पहले हमेशा कोई भी स्टेटमेंट है ऐसे चेक करना है। ठीक है, देन चेक दी टाइप ऑफ ऑपरेंट, मतलब ऑपरेंट की टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है, चेक दी टाइप ऑफ ऑपरेंट। ठीक है, कि वो स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन ऐसे, तो आपको चेक करना है। ठीक है, और फिर गेट द रिजल्ट, ऑपरेंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग हुआ, इफ स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है या नॉन न्यूमेरिक। मैं आपको सारे एग्जांपल जो मैं बोल रही हूँ अभी बताऊंगी, क्योंकि ये सारे सिनेरियोस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, क्या है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे देखते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं इन सिचुएशंस के लिए ना, ये बस ये स्टेप्स ऐड करना है, ये मैंने खुद ही बनाया स्टेप्स, मैं हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करती हूँ जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले, सपोज ये अब किसी ने मुझे इसकी आउटपुट पूछी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब कितने ऑपरेटर हैं और उनकी प्रेसिडेंस, मतलब प्लस प्लस है, दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, प्रायोरिटी सेम है, और मैंने बोला था जब भी प्रायोरिटी सेम हो तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, और एक बारी में दो ही ऑपरेटर ऑपरेंट सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे इनिशियली सिर्फ इतना सेलेक्ट करना है, आप भूल जाओ इसके बाद क्या, आपको सिर्फ इतना पार्ट सेलेक्ट करना है, 90 प्लस 90। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, 90 प्लस 90। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है चेक द टाइप ऑफ ऑपरेंट, अब आपको चेक करना है जो ऑपरेंट है वो न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, क्या है। अब ये क्या था, नंबर है, तो 90 प्लस 90 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 100 180। ठीक है, प्लस अगर स्ट्रिंग होता फिर मैं चेक करती न्यूमेरिक है नॉन न्यूमेरिक, अभी स्ट्रिंग था ही नहीं तो मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया, प्लस वर्ड। ठीक है, अब वापिस से फर्स्ट स्टेप पे चले जाओ, वापिस से चेक दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, फिर से ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करो क्या है, प्लस ये एक ही है। फिर आप दोनों ऑपरेंड का डेटा टाइप चेक करो, ये है नंबर, ये है स्ट्रिंग, और जब भी स्ट्रिंग आए और प्लस आए, हमेशा याद रखना जब भी स्ट्रिंग और प्लस आए तो कंकैटिनेट ही होगा, तो इसका आंसर 180 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब आप 180 वोल्ट देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, आप लोग देखोगे 180 वोल्ट आएगा, सी 180 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ 20 प्लस एस टी आर मतलब हेलो, प्लस 40। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब फिर से चेक द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कितने ऑपरेटर है, प्लस प्लस, दोनों सेम है, प्रायोरिटी सेम है, तो विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सबसे पहले लेफ्ट से राइट ये दोनों ऑपरेंड आएंगे, 20 प्लस, एक बार में दो ही ऑपरेंड सेलेक्ट किया करो बस, 20 प्लस, अब स्ट्रिंग क्या है, हेलो, 20 प्लस हेलो, जब भी स्ट्रिंग हो प्लस साइन हो कंकैटिनेशन ही होगी। ठीक है, कंकैटिनेशन ही होगी, अब 20 हेलो स्ट्रिंग बन जाएगा, प्लस 40। फिर से फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ, चेक द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्लस है, दो ही चीजें एनीवेज, चेक द टाइप ऑफ द ऑपरेंट, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, प्लस है, कंकैटिनेट हो जाएगा, जब भी प्लस हो स्ट्रिंग हो हमेशा कंकैटिनेट होगा, हमेशा, ये चीज तो याद ही रख। ठीक है, अब मेरे पास ऐसे, अब मैंने सारा प्लस प्लस लिया था, अब हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से कि 20 प्लस और मल्टीप्लाई बाय 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस STR2, अब मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस STR, अब मैंने ऐसी सिचुएशन ले ली। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से चेक द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एक मल्टीप्लाई एक माइनस है, प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों सेलेक्ट किए, अब फिर चेक करना डेटा टाइप क्या है, एक नंबर है एक नंबर है, मल्टीप्लाई है, हो जाएगा 400 आ जाएगा, माइनस हेलो
और सॉरी माइनस वर्ल्ड हो गया, ठीक है। अब str2 में वर्ल्ड है तो बेसिकली str2 मतलब वर्ल्ड। फिर से ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करेंगे, एक ही ऑपरेटर है, और एक है नंबर, एक है स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मैंने कहा सिर्फ स्ट्रिंग हो प्लस हो, स्ट्रिंग पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर वर्क करता है प्लस, और कोई नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है और माइनस है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ इसके आउटपुट क्या आएगी। 400 है माइनस वर्ल्ड, मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी। 400 माइनस वर्ल्ड आ रहा है, मल्टी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट, क्या आना चाहिए यहाँ पे। 400 माइनस वर्ल्ड है इन स्ट्रिंग, तो क्या आना चाहिए। 65 की आउटपुट क्या होगी। ये स्टीम, आप लोग मुझे बताओ इन सब में से जो भी हमने पढ़ा अभी तक, पॉसिबली इसकी 400 माइनस क्या है, वर्ल्ड है। कर सकते हो सब्ट्रैक्ट। मैंने अभी बताया सिर्फ प्लस वर्क करता है स्ट्रिंग पे और कोई वर्क नहीं करता, ठीक है। तो अगर 400 माइनस वर्ल्ड आए तो क्या आएगा। नो, नो नो, नॉट अ नंबर। अभी मैंने यहाँ बताया था ना जब मैंने स्ट्रिंग्स को सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब जब भी आपके यहाँ जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन है जब आप डेड एंड हो, मतलब आपको पता है, मतलब इसके बाद आप रिजॉल्व ही नहीं कर सकते हो, तो नॉट अ नंबर आए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एन एन आता है कि आपने मल्टीप्लाई, अब इस सिचुएशन में 400 माइनस वर्ल्ड पे पहुंचे, वो तो आप कर ही नहीं सकते हो ना, तो उस सिचुएशन में नॉट नंबर आ जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से मेरे पास है वर्ल्ड स्ट्रिंग 2 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है। अभी आप लोगों में से कुछ लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर पता है क्या दोगे, स्ट्रिंग 40 दोगे, ठीक है। आप लोग चलो बताओ, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये चारों स्टेप फॉलो करके बताना। ये मैं अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये सिंपल लग रहे होंगे शायद थोड़े, ये फॉलो यूज करने की जरूरत, ये 4 स्टेप से ना आपके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो सकते हैं। अभी ये वाले स्टेप तो मैंने काउंट ही नहीं किया, अभी मैं सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो कर रही हूँ, 69, 70 और 72 वाला। अभी मैंने 71 पे आना है। आप लोग मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी, 66 की क्या आएगी। आराम से कर लो, स्टेप फॉलो करो। बस एक याद रखना, स्ट्रिंग पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर वर्क करता है, प्लस। प्लस और स्ट्रिंग को कनकैट हो जाएगा, अदरवाइज नॉट ए नंबर ही आएगा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ। ओके, वर्ड 40, ठीक है। चलो अब इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, चेक द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो दोनों प्लस प्लस है, ठीक है, दोनों प्लस प्लस है। अब प्लस प्लस है, प्रायोरिटी सेम है, विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट है, ठीक है, और राइट। सो लेफ्ट राइट में दोनों, पहले तो मैंने कहा एक बारी में दो ही सिलेक्ट किया करो, तो ये क्या था, वर्ल्ड प्लस स्ट्रिंग में वर्ल्ड है, str2 मींस वर्ल्ड, राइट। तो ये हैगा वर्ल्ड प्लस 20, इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लो। अब मैंने बोला ये वाला सेलेक्ट होगा क्योंकि प्रेसिडेंट सेम है, और चेक द और डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग है और प्लस है तो कंकैटिनेट होगा, लाइक आई मेंशन्ड। वर्ल्ड 20 आ गया, ठीक है। ये कंकैटिनेट होके स्ट्रिंग ही मिलती है आपको, प्लस 20 हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग है प्लस है कंकैटिनेट, तो इसका आंसर आएगा वर्ल्ड 2020, ठीक है। तो ये मैंने ना इसलिए आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी ना आप जल्द में मतलब स्पीडली देखोगे तो आपको ना इसका आंसर वर्ल्ड 40 देने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको लगेगा 20 प्लस 20 हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इसको रूल फॉलो करना है, इसलिए मैंने ये रूल्स बताए, यही 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से, चलो एक काम करते हैं, अब ये वाला स्टेप इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये आई होप पता ही होगा, अगर एक स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स हो तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हो तो इसको बोलते हैं अल्फा स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग में कॉम्बिनेशन हो उसको नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग कहते हैं। अल्फा को भी नॉन न्यूमेरिक कह सकते हो वैसे आप लोग, ठीक है, ये याद रखना। जब मैं बोलूंगी ना न्यूमेरिक स्ट्रिंग, उसका मतलब एक स्ट्रिंग ऐसी जिसमें सिर्फ नंबर है। अल्फा बोलूंगी तो मतलब अल्फाबेट्स, नॉन न्यूमेरिक बोलूंगी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नंबर, अल्फाबेट, डिजिट्स कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टाइप्स होती है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा 20 इन स्ट्रिंग प्लस 20, अब चेंजेस हो गए थोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा चेंजेस आ गया। अब मैंने ना 20 इन स्ट्रिंग प्लस 20 लिखा है। अब फिर से जाएंगे, अब हमारे पास ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, सारे अल्फाबेट थे इसलिए जरूरत नहीं थी स्टेप की, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले चेक करो ऑपरेटर प्रेसिडेंट, एक ही ऑपरेटर है, डेटा टाइप चेक करना है, एक स्ट्रिंग है और एक प्लस है। तो मैंने कहा था जैसे ही स्ट्रिंग आए
और प्लस आए उसको कंकैटिनेट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव की क्या है। तो इस केस में तो आएगा 2020। ठीक है, 2020 आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लिख दूंगी कंसोल डॉट लॉग ऑफ 20 इन स्ट्रिंग स्लैश 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ये यहाँ पे फिर से आ जाओ, चेक द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एक ही डिवाइड है, चेक द टाइप, एक है 20 और एक है 2। ठीक है, एक है 20, एक है 2। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और मैंने आप लोगों को कहा था स्लैश है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में माइट भी होगा कि नॉट ए नंबर आना चाहिए क्योंकि प्लस ही वर्क करता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आपको एक और स्टेप चेक करना होता है कि स्ट्रिंग न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है और अल्फा है। ठीक है, इस ये ऊपर जितने भी एग्जाम्पल थे ना ये वाले, इन सब में अल्फा स्ट्रिंग थी, इसलिए ऑब्वियसली कनकैट हो गया। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे भी कंकैट होगा, स्ट्रिंग है प्लस है तो कंकैट ही होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है लेकिन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है 20/2, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ठीक है, यही फॉलो कर रही हूँ मैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक किया, स्लैश आया, चेक द टाइप ऑफ ऑपरेंड, एक स्ट्रिंग है और 2 है, फिर चेक करना है कि स्ट्रिंग है तो कौन सी स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, अल्फा या नॉन न्यूमेरिक है। ठीक है, अब स्ट्रिंग है तो कौन सी है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। अगर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, इफ न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, तो वो क्या कर देगा, अगर तो प्लस होता है यहाँ पे फिर तो वो कंकैटिनेट कर देता। अगर कोई और ऑपरेटर है और वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो वो क्या कर देगा, इस 20 को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो 20/2 10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कोहेजन। इम्प्लिसिट मतलब जावा स्क्रिप्ट ने डेटा टाइप अपने आप चेंज कर दिया। जावा स्क्रिप्ट ने यहाँ पे 20 वाला जो स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप है उसको 20 नंबर कर दिया। अब खुद देखो मुझे 10 मिल रहा है लाइन नंबर 70 पे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर तो आपके पास पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करो, फिर आप चेक करो तो टाइप ऑफ ऑपरेंड क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है। ठीक है, बुलियन चलो अभी बताया नहीं, उसको हटा देती हूँ। ठीक है, कि वो स्ट्रिंग है, एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, अगर तो वो प्लस हो, इफ प्लस, फिर तो आप डायरेक्टली उसको कंकैटिनेट कर दो। लेकिन अगर वो न्यूमेरिक हो, ठीक है, और कोई ऑपरेटर है और वो न्यूमेरिक, फिर आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग न्यूमेरिक है। कब चेक करना है, जब ऑपरेटर प्लस के अलावा है। ठीक है, प्लस या माइनस होता, ठीक है, तो आपको चेक करना है। अगर तो ऑपरेटर अदर देन प्लस है, ठीक है, तो आप चेक करोगे कि जो स्ट्रिंग प्रेजेंट थी वो न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है, अल्फा है। स्ट्रिंग कौन सी है, न्यूमेरिक। अगर तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है और ऑपरेटर प्लस के अलावा कोई और है तो वो क्या करेगा, 20 को कन्वर्ट कर देगा, 20 स्ट्रिंग टू 20 नंबर। तो यहाँ पे आपको 10 मिल जाएगा। और आपको मैं यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मेरे ब्राउजर में जो नंबर्स थे वो ब्लू कलर में आते हैं और जो स्ट्रिंग्स है वो ब्लैक कलर में। 10 ब्लू कलर में आ रहा है, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत सारी सिचुएशन, सपोज 10 इन स्ट्रिंग -2 होता। अब फिर से चेक दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, माइनस है, एक ही है, टाइप ऑफ ऑपरेंड क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, प्लस अदर देन प्लस है तो हम इस स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, अगर प्लस होता तो मैं डायरेक्टली कंकैट कर देती, अगर प्लस के अलावा है तो हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है, अल्फा है। स्ट्रिंग क्या है, न्यूमेरिक, ये कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 8। आप खुद देख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर, और इसी से मैंने कहा था एक टॉपिक निकल के आता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसी टॉपिक से निकल के आता है। ठीक है, और जब भी आपको ये करना है, ये 4 स्टेप फॉलो करना हमेशा, यही 4 स्टेप, ये स्टेप मैंने खुद ही बनाए, आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और ये बेस्ट होता है। यहाँ पे और अगर एक्सप्लेन करना हो तो मैं लिख देती हूँ, इफ ऑपरेटर अदर देन अदर देन सॉरी अदर देन प्लस। ठीक है, अगर ऑपरेटर अदर देन प्लस है तो ही आप चेक करोगे कि टाइप स्ट्रिंग की क्या है, और यहाँ पे आप चेक करोगे टाइप ऑफ ऑपरेट। ठीक है, और अगर प्लस प्रेजेंट होगा तो डायरेक्टली कंकैटिनेट करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 20+20 था, तो यहाँ पे ये आप लोग सोच रहे हो कि अब ये अगेन स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने यहाँ बोला है कि अगर प्लस है स्ट्रिंग है तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, सिर्फ न्यूमेरिक स्ट्रिंग और अदर देन प्लस हो तो आपका ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, अदरवाइज नॉट। इज इट क्लियर, ये वाला पार्ट क्लियर है, ऋषभ क्लियर हो गया कि 20 ये वाला कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इंटरव्यू के लिए
मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस बना दिए, मैं आपको एक सेकेंड देती हूँ। अब मैं बताती हूँ इसको करना कैसे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे आपके 2 टास्क दे रही हूँ मैं आज, ठीक है। पहला टास्क तो सिंपल है, आपको एक वेरिएबल बनाना है एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय के पास डिटेल्स क्या हो सकती है, नेम, एज, सैलरी, डेजिग्नेशन, ये वेरिएबल्स क्रिएट करना है। उसके बाद सिटी किस में रहता है, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है, ये सारा। अब आपको क्या करना है, ये सारा यूजर से डेटा लेना है, ठीक है। थोड़ा फैंसी तरीके में डिस्प्ले दिखाना है, जैसे कि आप यहाँ पे ना क्या कर सकते हो, कार्ड बना सकते हो, ठीक है। सेंटर में वेबसाइट के वहां पे सारा डेटा यूजर का डिस्प्ले करा सकते हो इन यूआई एंड स्टाइल, ठीक है। कार्ड ट्राई कर सकते हो, एम्प्लॉय कार्ड। अब नेक्स्ट है, ये सारी क्वेश्चंस करने कैसे हैं, ठीक है। ये वाला हटा देती हूँ क्योंकि इसमें बुलियन चाहिए, बुलियन मैंने भी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं, आपको क्या करना है, अनकमेंट करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन जब मैं आप ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, प्रोसेस सुन लो कैसे करना है, अदरवाइज कर नहीं पाओगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन ना रियल टाइम इंटरव्यू से, मतलब इंटरव्यू में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे ही अनकमेंट कर देना है, ठीक है। अब इसको रन मत करने बैठ जाना, रन कर दिए फिर तो आंसर ही पता लग जाएगा, वो नहीं करना। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कमेंट्स ऐड किए हुए हैं, आपको जो भी आंसर लगता है वो लिख देना। सपोज ये वाला मैं रिजॉल्व कर देती हूँ, इसका आंसर आएगा A1, ठीक है। सिर्फ इतने पार्ट का आंसर आएगा A1, एक वाले एक मैंने आपको कर दिया। तो आपने इसके आंसर्स ना यहाँ पे लिखते जाने हैं, सपोज इसका XYZ जो भी आ रहा है, आपने इसकी तरह जैसे मैंने इसका लिखा ना A1 आंसर लिखते जाना। उसके बाद जो इसका आंसर चेक करना है कि आई थिंक 10 क्वेश्चंस होंगे आपको। उसके बाद इन 10 में से अगर आप 7 8 कर पा रहे हो, मतलब आपके टॉपिक क्लियर है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ टीम, आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इनिशियली मैं ये आपको कमेंटेड ही दूंगी, ठीक है। ये फाइल खोलना, इसके बाद इसको अनकमेंट करना, मेक श्योर इसको रन मत करो, रन ही मत करो, क्योंकि रन कर दिया फिर तो आंसर ही पता लग जाएगा, ठीक है। एक एक करके ऑलरेडी कमेंट्स एडेड है, जो भी आपको लगता है आंसर आएगा उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। और उसके बाद फिर रन करके आउटपुट चेक करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इनमें से 3 4 ये वाले जो है ना, जैसे ये रियल टाइम इंटरव्यू के क्वेश्चन, ठीक है। ये सेल्फ प्रैक्टिस ही है, इसमें मैं मतलब वैसे भी कुछ कर नहीं सकती, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ही दे सकती हो। इनमें से आप 10 में से 7 8 कर पा रहे हो, मतलब आपको टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज नहीं है, वापस रिकॉर्डिंग देखना और कुछ पूछना होगा मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस का प्रोसेस समझ आ गया सबको, कैसे करने हैं। आपको ऑनलाइन ऐसे मिलेंगे नहीं क्वेश्चंस इम्प्लिसिट वाले, ऐसे धीरे धीरे मैं आपको और देती रहूंगी जैसे जैसे मुझे और दिखेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का प्रोसेस पता लगे, अनकमेंट करना, सारे आंसर लिख देना और फिर चेक करना क्या आंसर है। क्लियर, टास्क इज क्लियर। जावास्क्रिप्ट में ना टास्क जो भी बोल रही हूँ मैं, जैसे जैसे रोज की रोज कर लेना, वरना जैसे लूप्स वाले टॉपिक आएंगे फिर बहुत पेंडिंग हो जाएगा। कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर रह गया है, ठीक है, वो मैं कल कवर कर दूंगी। एनी क्वेश्चंस और शुड बी लाइक रैप फॉर द डे, किसी को कुछ पूछना है। हाँ अर्शदीप, बिल्कुल अलग फोल्डर बनाना है उसको। सिंपल रीजन यही है कि हम रियल टाइम में सारे फोल्डर्स अलग अलग बनाते हैं, तो CSS की तरह JS का भी बनाना है, जैसे मैंने क्रिएट किया बिल्कुल वैसे। एंड प्लीज जावास्क्रिप्ट में रेगुलर रहना, क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है ना, फिर वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है। तो रिएक्ट जेएस तभी समझ आएगी जब जावास्क्रिप्ट क्लियर होगी, ठीक है। और इनिशियल के लिए टॉपिक्स तो बहुत ईजी है, सारे आप पढ़ चुके ऑलरेडी, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ऑलराइट, थैंक यू टीम। ओके, टास्क में यूजर से इनपुट लेना है क्या, शुक्र नहीं है। नहीं साहिब, आपको यूजर से इनपुट नहीं लेना है, आपको नॉर्मल वेरिएबल्स बनाने हैं। अगर आपको आता है यूजर से इनपुट लेना तो कर सकते हो, मैंने अभी वो नहीं पढ़ाया है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वेरिएबल्स बना, ठीक है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू टीम, हैव अ नाइस डे, विल कनेक्ट टुमारो, बाय।